Good evening to all. Today we will discuss Sahodaya Preborad examination 2024-25 class 12 physics paper, and this is your set 1 question paper. So let's start from question number 1. So question number 1 is, a conducting sphere of radius capital R is given a charge capital Q. Okay, this is suppose your conducting sphere, and it is given its radius is capital R and it is given a charge capital Q. And as per the question, consider 3 points B at the surface. Suppose this is the surface point B, A is at the center point is A, and C at the distance R by 2 from the center. So from A at a distance R by 2, our point C is present. So the electric potential at these 3 points are such that we have to find the correct relation. So we know the formula for electric potential due to point charge, V is equal to KQ by R. So this is your working formula. And remember, at surface small r is equal to capital R. That means the formula will be V surface, it will be K capital Q divided by capital R. And another point is there in our concept. In case of conducting sphere, outside electric potential decreases with increase in R. We know this. So in this formula, V is proportional to 1 by R. So with increase in R, V value decreases. But this is for outside the sphere, V out. And always remember, surface potential is equal to inside potential. V surface is equal to V inside. That means surface का जितना potential होगा, potential on the at point B is equal to, देखो A point and C point both are inside this conducting sphere. So potential at B is equal to potential at A equal to potential at C. So our correct option is option A. Next come to question number 2. So question number 2 is, देखो, two charged spherical conductors of radius X1 and X2 are connected by a conducting wire. This is suppose these are two charged conducting spheres. Both are having different radius. This is radius X1 and this is radius X2. This is suppose your first conducting sphere and this one is our second conducting sphere. And both are connected by means of a connecting wire. So then the ratio of the surface charge densities of the two spheres. Let's its surface charge density sigma 1, second sphere का sigma 2. So as per the question, sigma 1 by sigma 2 का value कितना होगा? Surface density means charge per unit area. Let charge given to first sphere is Q1, for second sphere charge is Q2. So it will be charge by area sigma 1. So Q1 by its area will be surface area 4 pi radius का square x1 square whole divided by Q2 divided by 4 pi x2 square. So after cancellation we will get Q1 by Q2 into x2 square divided by x1 square. But we don't know about the value of Q1 and Q2 because all the options are available in form of x1 and x2. So when both the conducting spheres are connected by means of conducting wire, then what will happen? Charge will flow from higher potential to lower potential. So we can say in this case charge will flow from higher potential to lower potential until and unless potential becomes same. That means after this connection we can say at equilibrium, we can write at equilibrium you will get potential of first sphere equal to potential of second sphere. So this is electric potential. So its value will be K Q1 by radius is X1 is equal to K Q2 by X2. That means we can write after cancellation Q1 by Q2, its value is x1 by
x2. So instead of this q1 by q2, we can write x1 by x2. That means x1 by x2 into x2 square by x1 square. So after solving, you will get the final answer is x2 by x1. So this is the ratio of surface charge densities of these two spheres. So our option number B is our correct answer. Next, come to question number 3. A current carrying circular loop of radius r is placed in the xy plane with its center at the origin. So क्वेश्चन हम लोग जितना पढ़ चुके हैं ना, उसी हिसाब से थोड़ा डायग्राम कर दो. So a current carrying circular loop of radius r is placed in the xy plane with center at the origin. So let's draw the diagram as per my instruction. So this is suppose your y axis, this is x axis, and this is the origin, center at the origin. Then it is asking half of the loop with x greater than 0 is now bent so that it now lies in the yz plane. So ये z axis कहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको, x axis and y axis को जो perpendicular, that means towards your face और perpendicular to the screen. तो इसको हम लोग ऐसे डॉट साइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे. दिस डॉट रिप्रेजेंट्स z axis. I hope it is clear. x greater than 0 means what? So this is origin. Origin से ऐसे चलेंगे तो this is your x greater than 0, x less than 0. This is y less than 0, y greater than 0. So as per the instruction available in question, half of the loop with x greater than 0 is now bent so that it now lies in the yz plane. So half of the loop x greater than 0. That means we have to consider the shaded portion, shaded half portion of the ring. So as per the question, the diagram will be, now see, this is your y axis, this is x axis, and ये जो half of the loop इसको हम लोग इरेज कर देंगे अभी. Now we have to bend the half of the loop. After bending, this is your half of the loop with x greater than 0. Now the plane of the loop lies in yz plane. This is completely 3D diagram. Which of the following statement is correct about the latter situation? The magnetic moment does not change. The magnitude of magnetic moment now decreases. The magnitude of B vector at 0, 0, z, that means z greater than r, increases. And regarding magnetic field, option 4 is also available. So first we have to calculate the magnetic moment. So let's check the magnetic moment of this ring, current carrying loop. Okay, if let us consider the direction of current as anti-clockwise. Yes, so what is the m vector value? So m vector value will be I into area vector. So radius is r, so its area vector will be, magnitude is pi r square, and area vector means perpendicular outdoor normal. So ये क्या होगा, k cap. This is your magnetic moment, initial magnetic moment. After bending, what will happen? You will get two loops. Half of the loop lies in xy plane, देखो, and remaining half of the loop lies in your yz plane. So जिस जो लूप xy प्लेन पे है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एलोंग x एक्सिस होगा, xy प्लेन पे होगा तो एलोंग z एक्सिस होगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो पिंक कलर, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये जो वाइट कलर, इस प्लेन को हम लोग 2 पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो m1 वेक्टर का आंसर क्या होगा? m1 वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू इसका एरिया का वैल्यू पाई r स्क्वायर बाई 2, आधा हो गया. एंड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या क्या, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पे अवेलेबल है. एंड m2 वेक्टर का आंसर क्या होगा? वही आई पाई r2 स्क्वायर बाई 2. एंड ये वाई जेड प्लेन पे अवेलेबल है, इसीलिए वाई जेड प्लेन पे होगा तो उसको परपेंडिकुलर क्या होगा? वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस. सो आई क्या पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग. सो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे बोथ m1 वेक्टर एंड m2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट मीन्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड m1 स्क्वायर
प्लस m2 स्क्वायर का रूट ओवर। सो m1 स्क्वायर का वैल्यू आई स्क्वायर पाई स्क्वायर आर फोर्थ बाई 4 प्लस m2 स्क्वायर इज आई स्क्वायर, वही सेम टू सेम पाई स्क्वायर आर फोर्थ बाई 4 का होल रूट ओवर। सो नाउ वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर पाई स्क्वायर आर फोर्थ डिवाइड बाई 4 होल रूट ओवर। सो सोल्यूशन करने के बाद फाइनल आंसर इज आई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 2। नाउ देखो ये है तुम्हारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट आफ्टर बेंडिंग एंड बिफोर बेंडिंग। इनिशियल पे वो आंसर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट देखो कितना था, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज आई पाई आर स्क्वायर। सो आफ्टर बेंडिंग इट इज आई पाई आर स्क्वायर बाई रूट 2। सो कम्प्लीटली क्या दिखाई दे रहा है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आफ्टर बेंडिंग डिक्रीजेस। सो दिस इज लेस दैन आई पाई आर स्क्वायर which implies magnetic moment decreases. Magnetic moment decreases after bending. This is the answer. So our option number B is our correct answer. Now come to question number 4. Consider the diffraction pattern for a small pinhole. As the height of the hole is increased, then the diffraction pattern will, in this case the diffraction pattern, the size decreases, the intensity increases, the size increases, intensity decreases. Okay, so first we have to know regarding some diffraction pattern. Now see, this is suppose the pinhole and this is the screen. So here as per the diffraction pattern, this will be our central maxima or central bright, and the diffraction pattern after this will be like this one. So it's the width of the slit, क्या है, d is the width of the slit. If d is the width of the slit, so diffraction pattern ये जो length, इसका आंसर क्या है, बीटा width of the maxima, वो क्या होगा, this is your first secondary minima, this is first secondary minima, and here this is also first secondary minima. इन दोनों के बीच में जितना लेंथ होगा दिस इज बीटा। बीटा का आंसर क्या है, बीटा इज इक्वल टू, वी नो, 2 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, एंड स्मॉल डी विड्थ ऑफ द स्लिट। सो एज पर दिस फॉर्मूला बीटा क्या है, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, सो क्वेश्चन इज आस्किंग हमारा जो पिन होल एज द साइट ऑफ द होल इज इंक्रीज्ड, दैट मीन्स व्हेन डी इज इंक्रीज्ड, सो बीटा का आंसर क्या होगा, बीटा डिक्रीज होगा। सो साइज ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न डिक्रीजेस, सो साइज ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न डिक्रीजेस। और एक चीज़ देखो, सो यहाँ पे एक आंसर मिल गया हमको, द साइज डिक्रीजेस। अनदर थिंग इज दैट आज साइज इंक्रीजेस, डी का वैल्यू क्या बोल रहे हैं वो, डी का वैल्यू इंक्रीज होगा। सो व्हेन ऑल्सो, यहाँ पे हम लोग ये भी डिस्कशन कर पाएंगे अभी, तो व्हेन वी कैन से व्हेन साइज इंक्रीजेस, d size increases, so energy passing through the hole increases. As a result, energy passing through the hole increases, और जितना सारा लाइट एनर्जी क्रॉस करेगा उसको, उसी हिसाब से इंटेंसिटी आंसर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। सो इंटेंसिटी इंक्रीजेस। सो ये जो क्वेश्चन अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर में, उसका 2 ही आंसर होगा। एक है हमारा साइज ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न डिक्रीज होगा एंड इंटेंसिटी का आंसर इंक्रीज होगा। सो उसी हिसाब से वी कैन से ऑप्शन सी इज ऑल्सो आवर आंसर। सो बोथ ए एंड सी इज द परफेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ए कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस उसका रिप्रेजेंटेशन XC इज इक्वल टू 100 ओम and a 100 ohm resistance. So R का वैल्यू गिवन
also 100 ohm are connected in series across a 220 volt source. तो एक है हमारा कैपेसिटर, दूसरा क्या है रजिस्टर, बोथ आर इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई. ये जो सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट ये हमारा VRMS. दिस इज नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज. सो एज पर द क्वेश्चन व्हेन द कैपेसिटर इज 25% चार्ज द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज डैश. सो रिमेंबर वन थिंग, आज इट इज आस्किंग अबाउट पीक वैल्यू ऑफ करंट. सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आज it is asking about peak value of current. So कैपेसिटर कितना परसेंट चार्ज हुआ है, कोई फर्क नहीं है. यस. सो पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे मिलेगा हमको, देखो. सो पीक वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करने के लिए वी नो पीक वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई इम्पीडेंस. सो VRMS का वैल्यू 220 मीन्स VRMS इज V नॉट बाई √2, दैट इज 220. सो V नॉट का आंसर क्या हुआ 220 √2 वोल्ट. दिस इज योर V नॉट. नाउ यू कैलकुलेट Z वैल्यू. सो Z का आंसर क्या होगा R² प्लस XC² √ओवर. दैट मीन्स 100² प्लस 100² √ओवर. दैट मीन्स 2 times of 100² √ओवर. द आंसर इज 100 √2 ohm. So if you will put the value, you will get the answer V naught equal to 220 √2 divided by 100 √2. So after cancellation we get 2.2 ampere. This is the peak value of current. So our option number B is our correct answer. 2.2 ampere is our correct answer. Now come to question number 6. An inductor of 12 millihenry and a capacitor of 18 microfarad are connected in the circuit as shown in the figure. The frequency of power supply is equal to the resonant frequency. That means it is given frequency of supply voltage is equal to resonant frequency. So at resonant frequency we know XL equal to, at resonance we know at resonance XL is equal to XC. We all know this. Another thing, if we will consider the phasor diagram. अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई इज इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट एंड व्हिच एमीटर विल रीड 0 एम्पियर. ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है तुमको देखो, तो A1 एमीटर ये किसके साथ अटैच हुआ है, इंडक्टर का करंट मेजर करेगा वो. जो एमीटर A2 वो कैपेसिटर में कितना करंट वो मेजर करेगा. एंड A3 देखो ये होल सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है उसको मेजर करेगा. सो आज पर द फेजर डायग्राम वी नो, को फेजर डायग्राम कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिस इज फॉर रजिस्टर एंड दिस इज योर इंडक्टर, दिस इज फॉर कैपेसिटर. और एक चीज़ देखो, ये तुम्हारा करंट थ्रू रजिस्टर, करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू कैपेसिटर. यस. सो और एक चीज़ यहाँ पे इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ आर इन पैरेलल नॉट इन सीरीज. सीरीज कनेक्शन पे हम लोगों को पता है इन सीरीज कनेक्शन करंट इज कांस्टेंट, इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा. सो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, फ्रॉम फिगर ऐसे बोल पाएंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. अच्छा, तो देखो ये है तुम्हारा इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 ऐसे करने से क्या मिलेगा, VL बाई XL इज इक्वल टू VC बाई XC. दैट मीन्स वी कैन से करंट थ्रू इंडक्टर इज इक्वल टू करंट थ्रू कैपेसिटर. करंट थ्रू इंडक्टर एंड करंट थ्रू कैपेसिटर बोथ आर इक्वल एंड वी नो करंट थ्रू इंडक्टर एंड करंट थ्रू कैपेसिटर बोथ आर आउट ऑफ फेज. देखो डायग्राम के हिसाब से बोथ आर आउट ऑफ फेज, बट IL and IC are out of phase.
सो आउट ऑफ फेज होने से नेट करंट कितना होगा 10, आई नेट का आंसर कितना होगा आई एल माइनस आई सी का मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू बराबर, सो 0। सो नेट करंट 0 होगा तो नेट करंट को A3 मेजर करेगा ना। सो नेट करंट इज मेजर्ड बाय द एमीटर A3। सो एज पर द क्वेश्चन व्हिच एमीटर विल रीड 0 एम्पियर, आवर आंसर इज A3 will read 0 ampere. So next come to question number 7. So correct the match the column 1 with column 2. So कॉल लाइट एंड यहाँ पे देखो लाइट उसका साथ रिलेशन है आई, तो ये तुम्हारा 1 का आर होगा। देन एक्सरे किसमें यूज होगा गीजर ट्यूब, सो 2 का पी। देन गामा रे मीन्स गामा 00, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, सो आयोनेशन चैम्बर पे यूज होगा, दैट मीन्स 3 का एस। एंड अल्ट्रावायलेट लाइट फोटोसेल, दैट मीन्स 4 का क्यू। सो आवर ऑप्शन नंबर 1R 2P 3S 4Q, सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8. So as per the question number 8, on applying potential difference of V volt on a proton, a wavelength lambda is obtained. That means one is your proton and the voltage applied to triton to produce the same wavelength. Okay, एक है तुम्हारा proton given available है, another one is triton available. So as proton का symbol क्या है H11 and triton का H13. So mass पूछेगा तो proton का हम लोग यूज करेंगे M and चार्ज पूछेगा तो Q, लेकिन ट्रिटन का चार्ज Q मास 3m ऐसे पुट करेंगे। सो ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट ऑन प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑब्टेन्ड इज लैम्बडा। द वोल्टेज अप्लाइड टू ट्रिटन वी हैव टू फाइंड V डैश टू प्रोड्यूस द सेम वेवलेंथ, सो उसका लैम्बडा भी वही लैम्बडा गिवन है। सो वी नो लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच, लैम्बडा इज इक्वल टू H by P. P is linear momentum. So in terms of accelerating potential, what will be the formula? The formula will be H by P is equal to 2mk root over kinetic energy, and instead of this kinetic energy we can write charge into accelerating potential. So H by 2m charge into accelerating potential root over. So lambda proton का वैल्यू क्या होगा, that is lambda, उसका आंसर होगा H divided by 2, mass of the proton is m, charge is q, accelerating potential V, capital V, that is root over. And similarly lambda triton उसका आंसर भी lambda, so H divided by ट्रिटन का मास कितना होगा 3m, 2 into 3m, एंड उसका चार्ज होगा q इंटू एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल वी हैव टू कैलकुलेट दैट इट बी V डैश, उसका होल रूट ओवर। सो अभी देखो ये लैम्बडा के लिए वी कैन यूज H बाई 2mq कैपिटल V रूट ओवर इज इक्वल टू RHS पे क्या है H बाई 2 इंटू 3m इंटू क्यू इंटू V डैश रूट ओवर। सो दोनों साइड से HH कैंसिल हो गया। और एक चीज़ याद रखो, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेकर स्क्वायरिंग कर दो। सो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करने से 2mq कैपिटल V इज इक्वल टू 2 इंटू 3m इंटू क्यू V डैश। सो आफ्टर सॉल्विंग 2mq, सो 2mq कैंसिल हो गया देखो। सो V इज इक्वल टू 3V डैश। सो V डैश का आंसर क्या मिला V बाई 3। सो ट्रिटन पे कितना एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई होगा V बाई 3। V बाई 3 वोल्ट इज आवर आंसर, so option A is your correct answer. Next come to question number 9. A beam of light converges at a point P, that means let us consider a convergent beam as per the figure. As a beam of light converges at a point P. Now a convex lens of focal length 20 cm is placed in the path of the convergent beam. Okay, यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस कर रहा हूँ। ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम, दैट मीन्स विदाउट द लेंस ऑल द रेज दे विल मीट एट पॉइंट पी। सो व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ये लोग पी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेंगे, सो दे अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट पी एक्चुअली कन्वर्जेंट बीम। ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा मैं। नाउ पी इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअली पी क्या है, पी इज अवर
virtual object as per the figure. So after refraction through this lens, they will meet each other at this point P dash, suppose. So a convergent beam when fall upon this convex lens, when convergent beam falls upon this convex lens, let all the rays converges at point P dash. So P dash is our image actually. P dash is our image. So question क्या देखा है, focal length of convex lens, that is f is equal to plus 20. Convex lens of focal length positive. Okay. Now a convex lens is placed in the path of the convergent beam at 12 cm from the P. अच्छा, सो ये जो P पॉइंट एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, दैट इज 12 सेंटीमीटर. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो द पोजीशन एट व्हिच द बीम कन्वर्जेस, दैट मीन्स वो P डैश पॉइंट का पोजीशन पूछ रहा है. P डैश इज अवर इमेज, दैट मीन्स P डैश पॉइंट का जो पोजीशन ना, वो क्या होगा, वो होगा हमारा इमेज डिस्टेंस V का आंसर कितना होगा वो पूछ रहा है. तो देखो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड इट इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव इन दिस केस. दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यू का आंसर -12 नहीं लिखोगे, +12 यूज करोगे. सो भी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो भी क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस. अभी समझ में आया सबको? फिर से देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे हम लोग. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर पोल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट, एंड इन दिस फिगर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. yes, this is the direction of incident ray. So both are in same direction, that means we can use distance is measured along the direction of incident ray is positive, so u is positive. So as per the lens formula, thin lens formula 1 by v minus 1 by u 1 by f. So 1 by v का आंसर क्या होगा, 1 by f plus 1 by u. So 1 by 20 plus 1 by 12. उसका एलसीएम क्या है 60, ये हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा 5. So 8 by 60. So 1 by v is 8 by 60. So v का आंसर क्या होगा 60 by 8 सेंटीमीटर. So our option number A is our correct answer, 60 by 8 सेंटीमीटर. u का वैल्यू नेगेटिव पुट करने से गलत हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10. सो एज पर द क्वेश्चन देखो, a beam of wavelength of light lambda nanometer from a distant source, suppose this is your source S, from distant source लाइट का जो वेवलेंथ वो है तुम्हारा लैम्बडा नैनोमीटर, फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट. यस, दिस इज दैट सिंगल स्लिट एंड d is the width of the slit, small d is the width of the slit. अच्छा, वो पूछ रहा है देखो फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट y मिलीमीटर वाइड. ओके, सो जिसको हम लोग d से रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल d. सो एक्चुअली एज पर द क्वेश्चन स्मॉल d का आंसर क्या है y मिलीमीटर. यस, वो है तुम्हारा कैपिटल Y एक्चुअली. एज पर द क्वेश्चन इट इज कैपिटल Y मिलीमीटर. एंड द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन. दिस इज सपोज द स्क्रीन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस x मीटर अवे. सो हियर कैपिटल D, जिसको हम लोग थ्योरी पे कैपिटल D दे रहे थे ना, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस वो गिवन दे रखा है x मीटर. सो द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. ये देखो, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का आंसर ये होगा, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. एंड ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है दीज आर द टू, दिस इज योर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 4 शायद 3 या 4. सो द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दैट मीन्स इसका डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा. इसका डिस्टेंस क्या लिखे थे हम लोग, बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d. सो एज पर द नोटेशन अवेलेबल इन क्वेश्चन पेपर, 2 लैम्बडा कैपिटल D मीन्स x डिवाइडेड बाई स्मॉल d मीन्स कैपिटल Y. सो 2 लैम्बडा x बाई कैपिटल Y, दैट मीन्स ऑप्शन D इज आवर करेक्ट आंसर. So next is our question number 11. In an unbiased PN junction at equilibrium, which of the following statement is true? Unbiased means PN junction not connected to battery. At equilibrium, we know diffusion current is equal to drift current. So your
option number A is correct answer. Diffusion current is equal to drift current. Next come to question number 12. So as per the question, a primary cell of EMF 1.4 volt. So EMF दे रखा है तुमको 1.4 volt. When short circuited, it gives a current of 2.8 ampere. Internal resistance of the cell वो पूछ रहा है कैलकुलेट करने के लिए. So ये एक्चुअली this is your load resistor and this is the cell and it is the internal resistance. This is capital R, this is your small r, this is induced EMF induced EMF बोल रहा हूँ, EMF of the cell, sorry, and this is the current. So as per the question, it is short circuited, primary cell of 1.4 volt when short circuited means R का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, लोड रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो चुका है. सो वी नो E इज इक्वल टू, वी नो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस. सो करंट I इज इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज इज E एंड टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r. सो कैपिटल R शॉर्ट सर्किट हो चुका है, दैट मीन्स 0. सो I का आंसर हो गया तुम्हारा E बाई R. E का आंसर 1.4 बाई 2.8, दैट इज योर 1/2, दैट मीन्स 0.5. वो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो अच्छा सॉरी. सो इट इज आस्किंग अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस. सो फ्रॉम दिस फार्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, I इज इक्वल टू E बाई स्मॉल r. सो स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई I. सो E का आंसर 1.4 वोल्ट डिवाइड बाई 2.8 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स 0.5 ओम. सो ऑप्शन C इज अवर आंसर. Next come to question number 13. So in assertion region question, in assertion part it is mentioned a galvanometer cannot be used as an ammeter to measure the current across the given section of the circuit. First thing, this is suppose our galvanometer, and galvanometer can be converted to ammeter. How we can convert it to ammeter? So when galvanometer is connected to shunt resistance in parallel. So when a shunt resistor is connected, shunt is a low resistance device. Yes, when it is connected to galvanometer in parallel, then the resulting setup is our ammeter. So here this is our ammeter. So assertion में क्या पूछ रहा है देखो, a galvanometer cannot be used to as an ammeter to measure the current across the given section of the circuit. So actually this is wrong. So it can be used, it cannot be used. Instead of this cannot be used, we can write can. The galvanometer can be used as an ammeter to measure the current across the given section. So that means assertion is wrong. Reason क्या लिखा है देखो, for this it must be connected in series with the circuit. Circuit means shunt resistor. Yes, so for this it must be connected in parallel with shunt resistor. That means reason is also wrong. So that means A false, R false. So option D is our correct answer. A false and R false. Now come to question number 14. So as per the question number 14, so in assertion between any two given energy levels, the number of absorption transitions is almost always less than the number of emission transition. देखो, suppose these are the energy levels. These are energy levels. सो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन एंड एमिशन ट्रांजिशन. सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे, सो एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद वो टॉप ऑर्बिट पे चला जाएगा. यस, बट इफ दैट इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी स्टेट्स, सो एमिशन ट्रांजिशन क्या होगा, ऐसे वो थर्ड ऑर्बिट पे चला जाएगा. नहीं तो ट्रांजिशन ऐसे भी हो सकता है. यस, ट्रांजिशन ऐसे भी हो सकता है. दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है हमको, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, एब्जॉर्प्शन, एंड दिस इज द केस ऑफ एमिशन. सो क्या दिखाई दे रहा है देखो, सो बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल्स द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज लेस दैन. यस, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज लेस दैन द एमिशन ट्रांजिशन. दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. And absorption transition starts from the lowest energy level. Yes, absorption transition
शुरू हो रहा है लोएस्ट एनर्जी लेवल ओनली एंड मे एंड एट एनी हायर एनर्जी लेवल, ऑब्वियसली ends at higher energy level, but emission transition may start from any higher energy level and end at any level below it. That is correct. End at any level below it. So assertion is correct, true, and reason is true, and reason also R is the correct explanation of A. Also R is the correct explanation of A. That means option A is our correct answer. R is correct explanation of A. Now come to question number 15. The nucleus X37, एक है हमारा X37 nucleus, another one is Y34. So assertion पूछ रहा है, देखो nucleus X37 is more stable than the nucleus Y34. Stability को चेक करने के लिए we have to focus upon binding energy per nucleon, लेकिन यहाँ पे तो उतना सारा डाटा अवेलेबल नहीं है. सो और एक दूसरा तरीका क्या है, N/P रेशियो. स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू N/P रेशियो ऑल्सो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, N/P रेशियो. सो इन फर्स्ट केस X37 पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 7 - 3 दैट इज 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3. इन सेकेंड Y34 पे कितना देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 - 3 दैट इज 1 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 3. सो N/P रेशियो कितना हो रहा है 4/3 दैट इज 1.33. एंड हियर N/P इज 1/3 दैट इज 0.33. सो आज 1.33 इज ग्रेटर दैन 0.33. सो वी कैन से X37 इज मोर स्टेबल. दैट मीन्स यहाँ पे assertion क्या है, करेक्ट. assertion इज करेक्ट. सो X37 रीजन देखो X37 कंटेंट्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर. दैट मीन्स वो रॉन्ग है एक्चुअली. सो ए ट्रू आर फॉल्स. सो 15 का ऑप्शन क्या होगा, सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. So the photoelectrons produced by a monochromatic light beam incident on a metal surface have spread in their kinetic energy. देखो ये सपोज हमारा मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस के ऊपर व्हेन रेडिएशन इंसिडेंट होगा ना, वो पूछ रहा है जितना सारा इलेक्ट्रॉन अभी वो निकल आएंगे, दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी. इसका मीनिंग क्या है, स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी मीन्स जितना सारा इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू डिफरेंट होगा. ये सही है या झूठे बोलो. देखो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल आएगा ना उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. तो ये जो इतना सारा लेयर दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाला लेयर से जो इलेक्ट्रॉन अभी निकल कर चला आएगा ड्यू टू कॉलिजन, उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगा. यस, तो सरफेस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा. सो जो भी सेंटेंस वो पूछ रहा है वो सही है एक्चुअली. The photoelectrons produced by a monochromatic light beam incident on a metal surface have spread in their kinetic energy. This is true. And इसका रीजन क्या लिखा है देखो, the energy of electrons emitted from the inside the metal surface is lost in collision with the other atoms in the metal. It is perfectly true. Okay, so A true, R is true, and correct explanation as well. And R is the correct explanation. So option A is our correct answer. So with this we have completed section A. In section A 16 questions are available belonging to 1 mark. So now we have already completed. Now proceed to section B. So section B, देखो in section B, that is section B starts from question number 17. In a photoelectric experiment, UV light of wavelength 280 nanometer is used with lithium cathode. Okay, this is suppose our lithium cathode metal and its work function is mentioned 2.5 electron volt and a radiation of wavelength lambda 280 nanometer is used. So next it is mentioned if the wavelength of incident light is switched to 400 nanometer, find out the change in stopping potential. So इसमें क्वेश्चन में नहीं गिवन नहीं है, देखो मेटल सरफेस चेंज नहीं हुआ है. तो बस पूछा है वो वेवलेंथ का वैल्यू लैम्बडा का वैल्यू 400 नैनोमीटर हो जाएगा, तो लेट इट इज लैम्बडा 1, दिस इज लैम्बडा 2. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इन दिस केस लेट इट बी V1, सेकेंड केस में V2. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, सो मेटल सरफेस बराबर मीन्स उसका वर्क फंक्शन भी बराबर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो
So now calculate the stopping potential in each case. After that you have to find the change in stopping potential. अच्छा, so lambda given है देखो, so if lambda is mentioned in nanometer, so which formula we have to use? We know, देखो we know K max is equal to, as per Einstein photoelectric equation, K max equal to E minus phi. So K max का वैल्यू कितना, EV नॉट इज इक्वल टू E माइनस फाई. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट का वैल्यू कितना होगा, E माइनस फाई डिवाइडेड बाई स्मॉल ई. यही है हमारा वर्किंग फार्मूला. लेकिन व्हेन वेवलेंथ इज लैम्डा 1, E1 का वैल्यू कितना होगा, देखो E1 का आंसर क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटन हमारा 1240. एक्चुअली जो फार्मूला है हमारा E का आंसर क्या है, E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा. उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नानोमीटर डिवाइड बाई लैम्डा इन नानोमीटर. लैम्डा नानोमीटर पे अवेलेबल है, मीन्स ई वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट करोगे. सो E1 का आंसर कितना होगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नानोमीटर डिवाइड बाई लैम्डा का आंसर 280 नानोमीटर. सो आफ्टर कैंसिलेशन देखो ये कितना आ रहा है, वो 4 से कटने से देखो 7, 31/7. उसको फिर से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 4.4. सो यहाँ पे आंसर आ रहा है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो E1 का आंसर मिल गया. सो V1 का वैल्यू क्या होगा, V1 होगा हमारा E माइनस फाइव बाई ई. ई का आंसर 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाइव का वैल्यू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई. सो न्यूमरेटर से ई कॉमन लेकर कैंसिल कर दो. सो कितना बचा, 4.4 माइनस 2.5, 4.4 माइनस 2.5 वोल्ट. इसका आंसर क्या होगा, 1.9 वोल्ट. उसी हिसाब से कैलकुलेट करो E2, देन फाइंड V2. E2 का आंसर क्या होगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नानोमीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इज 400 नानोमीटर. सो नानोमीटर कैंसिल होने के बाद 1 0 कैंसिल, देन ये बच गया 10, 4 से डिवाइड करने से 31/10 दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो V2 का आंसर क्या होगा, V2 इज सिंपली E माइनस फाइव डिवाइड बाई ई, दैट इज योर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई. ई कैंसिल हो गया, 3.1 माइनस 2.5 इज 0.6 वोल्ट. सो आज पर द क्वेश्चन डेल्टा V दैट मीन्स कितना होगा, V1 माइनस V2. सो 1.9 माइनस 0.6, ये होगा तुम्हारा चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल. द फाइनल आंसर इज 1.3 वोल्ट. दिस इज आवर परफेक्ट आंसर. आई होप दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ऑल ऑफ यू. सो नेक्स्ट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ सेक्शन B. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 18. इन YDC द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.3 मिलीमीटर. ओके, तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो. देखो YDC में वी आर यूजिंग 2 स्लिट्स, नैरो स्लिट्स. ओके, तो 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस D. उसका आंसर क्या दे रखा है, 0.3 मिलीमीटर. एंड दिस इज द स्क्रीन, दिस इज आवर स्क्रीन. स्क्रीन इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट. सो स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कैपिटल D इज इक्वल टू 1.5 मीटर. सो डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, दिस इज योर सेंट्रल ब्राइट. सो क्या पूछा है, देखो डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट. यहाँ पे तुम्हारा सपोज फोर्थ ब्राइट, नीचे भी क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट का नीचे भी फोर्थ ब्राइट. ये दोनों फोर्थ ब्राइट के बीच में, फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस दैट इज योर 2.4 सेंटीमीटर. बट रिमेंबर सेंट्रल ब्राइट से वो जो फोर्थ ब्राइट, उसका डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, y फोर्थ ब्राइट. ये टोटल डिस्टेंस 2.4 होगा, तो y फोर्थ ब्राइट का डिस्टेंस कितना होगा, 2.4/2 दैट इज 1.2 सेंटीमीटर. यस, सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कितना होगा कैलकुलेट करेंगे हम लोग. देखो सो वी नो y nth ब्राइट, उसका आंसर क्या है, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. सिमिलरली y4b, इसका आंसर क्या होगा, 4 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. उसी हिसाब से आज पर द गिवन क्वेश्चन इट इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर दैट इज 1.2 इंटू 10⁻² मीटर. सो बस वैल्यू पुट करके हम लोग को कैलकुलेट करना है लैम्डा. लैम्डा वैल्यू क्या होगा,
1.2 इंटू 10⁻², स्मॉल डी बाई 4d, 4 कैपिटल डी, स्मॉल डी बाई 4 कैपिटल डी। सो बस यूनिट कन्वर्सन इज कम्प्लीटली नेसेसरी। देखो, सो 1.2 इंटू 10⁻², स्मॉल डी का वैल्यू कितना 0.3 मिलीमीटर, 0.3 मीन्स 10⁻1 इंटू मिली मीन्स 10⁻3 मीटर। तो इसका आंसर आ रहा है 3 इंटू 10⁻4 मीटर। ये है हमारा स्मॉल डी का वैल्यू। तो स्मॉल डी इज 3 इंटू 10⁻4 मीटर डिवाइडेड बाई 4 इंटू कैपिटल डी इज 1.5, 1.5 मीन्स 3/2, सो 3 ये बाई 2 ऊपर चला आएगा। बस अभी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड ये हुआ तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 0.6। तो कितना आंसर आ रहा है 0.6 इंटू 10⁻6। दैट मीन्स 0.6 इज 6 इंटू 10⁻1, सो वी कैन राइट 6 इंटू 10⁻7 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। जो लाइट यूज हो रहा है, लाइट का स्पीड कितना c, सो वी नो c इज इक्वल टू f लैम्बडा, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लैम्बडा। c इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻7। तो ये हमारा आ गया 0.5 इंटू 10⁻, कितना 15, और वी कैन से 5 इंटू 10⁻14, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। दिस इज द value of frequency of light used. I hope it is clear. So this is about our question number 18. Next come to question number, okay, in question number 18 another question is there in our question. Now see, white light is passed through a double slit and interference is observed on a screen 1.5 meter away. That means capital D is mentioned 1.5 meter and the separation between the slit, इसको हम लोग बार बार मैं लिख चुका हूँ, separate between the slits is d 0.3 millimeter. We can write it as 3 into 10⁻4 meter. The fast violet and red fringes are formed 2 millimeter and 3.5 millimeter away from the central white fringe. Okay, so as per the question, this is suppose the screen and this is our central white और सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट से हमारा 2 मिलीमीटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2 मिलीमीटर, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, तो फास्ट वायोलेट इज एट ए डिस्टेंस 2 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल वाइट। दिस इज योर फास्ट वायोलेट। सो ये डिस्टेंस को हम लोग मानेंगे y1 भी। सो गिवन मेंशन करके हम लोग y फास्ट वायोलेट इज एट ए डिस्टेंस 2 मिलीमीटर। यस, एंड as per the question, the red fringes, the fast violet and red fringes, that means this is your fast red fringes. Fast red fringes is at a distance 3.5 millimeter away from the central white fringe. That means यहाँ पे ये देखो, ये हमारा fast red fringes, तो ये central white से जो distance we can denote it as y1r. So y1r का वैल्यू कितना है, y1r as per the question, y1r is equal to 3.5 millimeter away. So find the difference in wavelength of red and violet light in nanometer. That means lambda r minus lambda v we have to find, क्योंकि wavelength of red तो maximum है always। बस, so from this given data इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, so find y1r माइनस y1v, ये कितना होगा 3.5 माइनस 2 मिलीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 1.5 मिलीमीटर। यस, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y एन बी, वाई एन स्क्वायर का आंसर क्या होगा, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यस, एंड y1v का आंसर क्या होगा इसमें, y1v एन का वैल्यू 1, सो लैम्बडा वायोलेट इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एंड y1r का भी आंसर लैम्बडा r कैपिटल D बाई स्मॉल डी। तो सिंपली इंस्टेड ऑफ y1r वी कैन मेंशन लैम्बडा r कैपिटल D बाई स्मॉल डी माइनस लैम्बडा v कैपिटल D बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर। यस, तो यहाँ पे कैपिटल D बाई स्मॉल डी कॉमन ले जाने से लैम्बडा r माइनस लैम्बडा v
इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. इसका आंसर 3/2, 1.5 3/2 मिली मीन्स 10⁻³ सो लैम्बडा आर माइनस लैम्बडा भी, इसका आंसर क्या होगा 3/2 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. सो सिंपली वी हैव टू सॉल्व. सो 3/2 इंटू 10⁻³ इंटू कैपिटल स्मॉल डी का आंसर क्या होगा 3 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई कैपिटल डी इज 1.5 दैट इज 3/2. वो 2 तक ऊपर आ जाएगा. सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 2 तो 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया. देखो और क्या बचा, देखो 3 इंटू 10⁻, ये कितना हुआ -4 -3 -7, उतना ही आ रहा है ना. 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर. सो इसको नानोमीटर पे कन्वर्ट करने से क्या होगा 3 इंटू 10⁻⁷ नानोमीटर. यहाँ पे नानो में एक्स्ट्रा लिखा हूँ मीन्स नीचे भी डिवाइड करूँगा नानो, दैट इज 10⁻⁹. सो -7 + 9 क्या हो जाएगा 2, दैट इज 300 नानोमीटर. करेक्ट. सो आंसर इज 300 नानोमीटर. ऐसा ही सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 18 का. और नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 19. So an electron after being accelerated through a potential difference of 10⁴ volt. So given potential difference, accelerating potential is 10⁴ volt, enters a uniform magnetic field of 0.4 Tesla perpendicular to its direction of motion. So remember, when velocity vector of a charged particle is perpendicular to magnetic field, the path is circular. The path becomes circular and the radius of the curve trajectory r is equal to, the answer will be mv by qb. This is the formula. So given v is equal to 10⁴ volt and the magnetic field value 0.04 Tesla, that is 4 into 10⁻² Tesla. So calculate the radius of curvature of this trajectory. तो यहाँ पे देखो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पे गिवन डाटा अवेलेबल है. सो इफ आर इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी, इसको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पे हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे. देखो विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ mv वी कैन राइट लीनियर मोमेंटम p बाई क्यूबी. p का आंसर क्या होगा √2m कैपिटल के डिवाइड बाई क्यूबी. सो k का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल 2m चार्ज इंटू एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल √2 डिवाइड बाई क्यूबी. अच्छा एक क्यूबी को हम लोग ऐसे भी लिख पाएंगे q² v² का √2. सो होल √2 लेने से फाइनल आंसर हम लोग ऐसे लिख पाएंगे 2m q एंड q² कैंसिल होने के बाद 2m एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बाई qb² होल √2. दिस इज आवर फॉर्मूला 2mv बाई qb². हियर v मीन्स कैपिटल V, दैट इज योर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल. सो नाउ वी विल पुट द रेस्पेक्टिव वैल्यू इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन. देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप. सो r इज इक्वल टू 2m एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिवाइड बाई qb² √2. सो यहाँ पे दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज. सो कितना होगा 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻³ kg एंड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल 10⁴ डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 इंटू b² मीन्स 4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर देन होल √2. नाउ एज पर माई इंस्ट्रक्शन नाउ ऑल ऑफ यू प्रोसीड. ये 10⁴ का √2 क्या होगा 10⁻², देन 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर उसका √2 4 इंटू 10⁻². सो सिंपली ऐसे लिखो दिस इज इक्वल टू 10⁴ का √2 10⁻² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻². देन अंडर रूट क्या बचा, देखो अंडर रूट बच गया हमारा 2 इंटू 9.1 डिवाइडेड बाई 1.6. यहाँ पे जो अवेलेबल है 10⁻31 10⁻19 डिवाइड बाई 10⁻19. सो -31 ऊपर आ जाएगा तो +19. सो इसका आंसर क्या होगा 10⁻12. फिर से यहाँ पे 10⁻12 का √2 वी कैन राइट इजीली. क्या होगा ये होगा तुम्हारा 10⁻2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई
4 इंटू 10⁻²। ओके, रूट ओवर ऑफ, और एक चीज़ देखो यहाँ पे 2 इंटू 9.1 इज 91/10, 1.6 मीन 16/10, सो 10 कैंसिल हो गया, 91/16। यस, और फिर से वो 16 का भी रूट ओवर क्या होगा 4, दैट मीन्स 1/4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा, ये कैलकुलेशन करने से क्या मिला हमको 10⁻², 10⁻6, 10⁻²। सो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 4, 4 - 6 -2, सो 10⁻² डिवाइड बाई 4। वो जो रूट ओवर के अंदर क्या था 1/16 का रूट ओवर 1/4, तो 4 बाहर आ गया, देखो 1/4। देन रूट ओवर पे क्या बच गया 2 इंटू 91। सो इसका आंसर क्या है 10⁻² डिवाइड बाई 4 इंटू 4, अच्छा √2 का आंसर क्या होगा 1.414। सो सिंपली राइट 1.4। रूट ओवर ऑफ 91 का रूट ओवर क्या होगा देखो 81, ये मैं लिख रहा हूँ 100, 81 का रूट ओवर क्या है 9, 100 का रूट ओवर 10। सो 9 और 10 के बीच के जो नंबर 9.5, सो 81 और 100 के बीच में जो नंबर 90.5, सो 90.5 का रूट ओवर 9.5 होगा। तो यहाँ पे 91 अवेलेबल है, सो ये ले जाओ नियरली 9.6, ऐसे ले जाओ 9.6। सो दिस इज़ नियरली इक्वल टू, देखो इधर, सो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमको, तो 1.4 बाई, सो 10⁻² डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू, इसको लिख लूँगा मैं 14/10 इंटू 96/10। ऐसे ना लिखने से भी चलेगा, ऐसे लिख लो बस। तो इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो 4 पे डिवाइड करो, 1.4 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ रहा है 0.35। देन ये 4, ये 9.6 को सॉल्व करने से ये मिल रहा है 2.4। यस, सो इसका आंसर क्या हो रहा है डायरेक्ट, इसको हम लोग ये लिखेंगे 0.35 इंटू 2.4 इंटू 10⁻²। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये मिलेगा हमको 8.4 नैनोमीटर। सॉल्व करके देखोगे ये कितना आ रहा था मेरा 8.4 नैनोमीटर। यस, सो आफ्टर दिस यू कैन सॉल्व इजीली। यस, सो नेक्स्ट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 19, we have already completed. Next come to question number 20. So in our question number 20, एक binding energy per nucleon versus mass number curve is available, and it is asking, what it is asking now, see, arrange the following nuclei in ascending order of the ease with which a nucleon can be taken out of the atomic nucleus: Li6, O16, Fe56, uranium 238. अच्छा, a nucleon can be taken out of the atomic nucleus in ascending order, we have to arrange. Ascending का मीनिंग क्या है, स्मॉलर टू ग्रेटर। यस, स्मॉलर टू ग्रेटर। सो आउट ऑफ दिस 4 given data, in which case it is easier to extract the nucleon from the nucleus. Now see, टॉपिक में हम लोग पढ़े थे जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना कम होगा उतना ही ईजी होगा न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से सेपरेट करना। तो देखो ये ग्राफ थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक से देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे तो Li6 यहाँ पे अवेलेबल है, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है देखो Li6। सो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व ये वाला। नेक्स्ट O16, ये नीचे वाला एक O है अवेलेबल है, ऊपर भी एक O है अवेलेबल है। तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करने के बाद तुमको पता चलेगा ऊपर वाला वो क्या है O16, ये नीचे वाला O18। सो O16 मीन्स यहाँ पे। यस, देन Fe56, ये वाला पॉइंट Fe56, बस कॉरेस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देन यूरेनियम 238, इसका ग्राफ यहाँ पे आएगा देखो। जो सबसे मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये होगा तुम्हारा 1, ये होगा तुम्हारा 2, दिस इज 3, दिस वन इज 4। यस, थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है मुझे पता है। सो फॉर दिस डायग्राम रेफर योर एनसीईआरटी बुक, इट इज अवेलेबल।
in nuclei chapter. This graph is available. So as per the ascending order we have to arrange. So क्या होगा हमारा आंसर? तो इसका आंसर ये होगा, सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी Li6, देन उससे थोड़ा ज़्यादा यूरेनियम 238, उससे ज़्यादा किसका ऑक्सीजन 16 O16, एंड सबसे ज़्यादा Fe56। ये है तुम्हारा फर्स्ट बिट का आंसर। अरेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स आर कंबाइंड इनटू द फॉलोइंग न्यूक्लियई और कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियई, एस्टिमेट व्हिच ऑफ देम विल रिलीज मोस्ट एनर्जी। अच्छा, सो द वर्किंग। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। 8 प्रोटॉन मीन्स 8 H11, 8 न्यूट्रॉन मीन्स 8 N01। वो मिलकर क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, देखो 1 C12 न्यूक्लियस एंड 1 He4 न्यूक्लियस। सो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, 1 C12 न्यूक्लियस प्लस 1 He4 न्यूक्लियस। सेकेंड में वो फिर से बोल रहा है वही 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन मिलकर N01 क्या फॉर्मेशन कर रहा है, 4 He4 न्यूक्लियई, 4 He4 न्यूक्लियई। सो व्हिच ऑफ देम विल रिलीज मोस्ट एनर्जी। यहाँ पे एक डाटा अवेलेबल नहीं है, देखो वो गिवन दिया जाएगा तुमको, मेंशन कर दो क्वेश्चन पेपर में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ C12, ये कितना 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ He4 न्यूक्लियस, ये किसका, ये इसका वैल्यू 6.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, सो अभी देखो ये जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है हमको जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या है C12, दैट मीन्स 12 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर अवेलेबल। देखो यहाँ पे जो गिवन में लिखा हूँ, ये गिवन डाटा में क्या लिखा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ C12 में जितना जो भी न्यूक्लियन है ना, जितना सारा न्यूक्लियन, कितना है न्यूक्लियन 12 न्यूक्लियन, तो एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितना एनर्जी अवेलेबल है 7.6 MeV एक न्यूक्लियन के लिए। तो यहाँ पे कितना न्यूक्लियन अवेलेबल है 12 न्यूक्लियन। सो कितना एनर्जी होगा, सो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसमें होगा 12 इंटू एनर्जी फॉर 1 न्यूक्लियन कितना 7.6 प्लस He4 4 न्यूक्लियन अवेलेबल है, लेकिन He4 में एक न्यूक्लियन के लिए एनर्जी 6.8। सो इसका आंसर क्या होगा 4 इंटू 6.8। तो इसको कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा 91.2 प्लस ये होगा तुम्हारा 27.2, दैट इज इक्वल टू 118.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, ये जो सेकेंड इक्वेशन अभी दिखाई दे रहा है, ये सेकेंड इक्वेशन पे हम लोग कैलकुलेट करना है कितना एनर्जी होगा। सो टोटल एनर्जी 4 कितना He4 अवेलेबल है 4 इंटू He4 में कितना न्यूक्लियन 4 न्यूक्लियंस, He4 का एक न्यूक्लियन कितना एनर्जी 6.8। सो इसका आंसर होगा 4 इंटू 6.8। सो 4 इंटू 6.8 इसको कैलकुलेट करने से मिलेगा हमको 108.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ देम विल रिलीज मोस्ट एनर्जी। तो हमारा आंसर ये वाला इक्वेशन होगा। यस, दिस इज मोर एनर्जी। आई होप न्यूक्लियर का क्वेश्चन समझ में आएगा सबको। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, देन फिर से इसको सॉल्व करो। नाउ we'll proceed to question number 21. So in question number 21 it is asking when an electron in hydrogen atom jumps from third excited state to ground state. अच्छा, third excited state means what? Third excited state, it means n is equal to 4 and ground state का मीनिंग क्या है, ground state means n is equal to 1, n is equal to 1. So how would the d Broglie wavelength have associated with the electron will change? Justify your answer. That means n is equal to 4 पे d Broglie wavelength सपोज लैम्बडा 4, ग्राउंड स्टेट पे d Broglie wavelength लेट इट बी लैम्बडा 1। सो ये जो लैम्बडा 4 एंड लैम्बडा 1 इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वही पूछ रहे हो। यस, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो सिंपल ट्रिक, वी नो लैम्बडा इज इक्वल टू h/p,
linear momentum h by mv, that is h by p के बदले पे हम लोग लिखेंगे 2m k रूट ओवर k is your kinetic energy. Okay. But in case of energy of electron, we know in case of kinetic energy बोलो या potential energy, okay, and हमारा टोटल एनर्जी, उसका आंसर क्या था -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी पे भी वही, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर. मेरा कहने का मतलब क्या है, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर. सो इंस्टेड ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, देखो सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे. एच बाई टू, अच्छा सॉरी, वी कैन राइट एच बाई 2m k रूट ओवर. सो इसमें पता चल रहा है लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ k. सो इंस्टेड ऑफ दिस k what we can write, proportional to 1 by रूट ओवर k is k proportional to 1 by n square, proportional to n square. सो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर का रूट ओवर 1 बाई एन, दैट मीन्स लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू n. इसका मीनिंग क्या है, लैम्बडा 4 बाई लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 4 बाई 1, दैट मीन्स लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 4 बाई 4. ये है हमारा आंसर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 4. आई होप दिस short method is clear to all of you. Yes, this is about our question number 21. Now come to question number 22. Okay, now up to this question number 21 we have finished our section B. Now come to question number 22, that is the first question of section C. So identify the circuit elements A, B and C as per the given diagram. Block diagram is given and draw the output waveform. Okay, so this is the question is, this is one block diagram is given, this is B and this is your A. and देखो A के पास इनपुट अवेलेबल है, ये क्या है हमारा, A इज योर ट्रांसफार्मर. रेक्टिफायर पता है तुमको, तो उसी हिसाब से आंसर ही तुम लोग सॉल्व कर पाओगे. सो A का क्या है, A इज योर ट्रांसफार्मर. B क्या है इसमें, B इज अवर डायोड. एंड C क्या है, C इज अवर रेजिस्टर. दिस इज द आंसर. देन इन सेकेंड बिट इज आस्किंग, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. इनपुट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज होने से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट कितना होगा, एंड व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी. Okay, we know in half wave rectifier हमको क्या पता है, फ्रीक्वेंसी आउटपुट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनपुट. सो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज, सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा. बट इन फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी आउट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इनपुट. सो आंसर कितना होगा, 2 into 50, दैट इज योर 100 हर्ट्ज. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23. yes, so derive the expression for the capacitance of parallel plate capacitor and what will happen if the space between the plates is completely filled by a dielectric of constant K. Okay, we have to derive the capacitance of parallel plate capacitor. A very simple question actually, completely theoretical question for the weak students. Now all of you see the distance between the two plates. One is your positive plate having charge plus Q, and this is negative charge plate having charge minus Q, and the separation between them is D. Area of each plate कितना, A suppose surface density इसका सिग्मा प्लस, इसका माइनस सिग्मा, इसका प्लस सिग्मा. ओके, दिस इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ दिस 2 प्लेट्स. इतना ही. इसके बीच में एक ही पॉइंट कंसिडर करो, जो भी पॉइंट, यहाँ पे क्यू नॉट प्लेस कर दो, चार्ज क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ये प्लस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट ना, वो क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा.
नेगेटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट ही करेगा. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सो वी नो ई का वैल्यू क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2. देखो कितना सिंपल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट चार्ज शीट कितना सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट. सो दिस विल बी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो 2 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट दैट इज सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट. सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया ऑफ इच प्लेट इंटू इप्सिलॉन नॉट. ये हो गया हमारा ई का वैल्यू. ई का वैल्यू फाइंड करने के बाद वी नो ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर दैट मीन्स वी बाई डी. सो वी का आंसर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी, विच इम्प्लाइज वी का आंसर आ गया हमारा ई का वैल्यू क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी. आज AR इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम, लेट इट बी C नॉट. सो क्यू बाई वी का आंसर क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट. सो आंसर इज ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी. सो दिस इज योर C नॉट इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी. This is the capacitance of parallel plate capacitor when AR is present in between the two plates. If the space between the plates is completely filled by dielectric of constant K. So क्या होगा, if space is filled with dielectric constant K, कैपिटल K. So E का आंसर क्या होगा इसमें, यहाँ पे जो E का वैल्यू हमारा आ रहा था Q बाई ए इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q बाई ए इप्सिलॉन नॉट इंटू के. ई का आंसर ये मिलने के बाद वी का आंसर क्या होगा, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी. सो क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट. ये हो जाएगा हमारा क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट के. दिस इज द वैल्यू ऑफ वी. सो वी मिलने के बाद हम लोग सी कैलकुलेट करेंगे. सी इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई वी. सो क्यू बाई वी मीन्स क्यू बाई क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट के. सो क्यू को कैंसिल होने के बाद ए इप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई डी. सो ये फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको, के सी नॉट. यस. सो कैपेसिटेंस सी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स. कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम्स. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24. So throw a ray diagram show image formation by a reflecting type telescope. Reflecting type telescope का अदर नेम क्या है, कासीग्रेन टेलीस्कोप. सो मेंशन एंड 2 एडवांटेजेस ऑफ दिस टेलीस्कोप. ओके. तो डायग्राम कैसा होगा देखो, ये सिंपल डायग्राम एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का. तो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी हिसाब से तुम लोग को ड्रॉ करना चाहिए. ये हमारा मिरर, ये कौन सा मिरर, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव मिरर. ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल आ रहा है ना, सो ये कलेक्ट करेगा अभी ऑब्जेक्टिव मिरर. सो टेलीस्कोप में हम लोग डिस्टेंस सब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करेंगे टेलीस्कोप. सो डिस्टेंस सब्जेक्ट से पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रहे हैं देखो बस. सो अभी इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या है, एक सेकेंडरी मिरर अवेलेबल है. ये एक सेकेंडरी मिरर, इसका नाम है सेकेंडरी मिरर. सो ऑब्जेक्टिव मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद और ये सेकेंडरी मिरर के ऊपर ऐसे फॉल हो जाएगा. देन यहाँ पे हमारा आई पीस अवेलेबल है. यहाँ पे दिस इज योर आई पीस. दिस इज आई पीस. तो ये जो रे अभी सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो आई पीस के अंदर एंटर हो जाएगा. यस. यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना चाहिए पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. यस. सो नाउ यू हैव टू राइट द advantages of this telescope. Any 2 advantages we have to write. So first advantages मैं लिख रहा हूँ देखो, क्या लिखना चाहिए, इट इज़ फ्री फ्रॉम spherical aberration. It is free from spherical aberration and it is free from chromatic aberration also. Free from chromatic aberration
देन और भी हम लोग लिख पाएंगे ब्राइटर इमेज, इमेज इज ब्राइटर, एंड फोर्थ क्या थे, इजी टू हैंडल, इट इज इजी टू हैंडल. So I hope spherical aberration you all know. If you don't know then listen. What is the meaning of spherical aberration? Just मैं हिंट में बोल रहा हूँ. स्पेरिकल एबिरेशन ये एक डिफेक्ट एक्चुअली क्या है. सपोज दिस इज योर लेंस, ये है तुम्हारा एक कॉन्वेक्स लेंस. तो स्पेरिकल एबिरेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, इफ दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, सपोज ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस एंड यहाँ पे ऐसे रह जा रहे हैं, देखो यस, ये सेंट्रल पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट पे ये है लेंस का सेंट्रल पार्ट, ऐसे समझो, एंड ये क्या है, रेड कलर पोर्शन लेंस का आउटर पार्ट. तो सेंट्रल पार्ट में रिफ्रैक्शन होने के बाद वो यहाँ पे फोकस हो रहे हैं, देखो सपोज यस, लेकिन आउटर पार्ट के ऊपर इंसिडेंट रेज फॉल होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पे मीट करेंगे, दूसरे फोकस में मीट करेंगे. दैट मीन्स ये डायग्राम के क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है आउटर पार्ट ऑफ लेंस डू नॉट ब्रिंग लाइट रेज इनटू सेम फोकस as the central part. सेंट्रल पार्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, सेंट्रल पार्ट से रिफ्रैक्ट होने के बाद, आउटर पार्ट से रिफ्रैक्ट होने के बाद वही पॉइंट पे वो मीट नहीं करेंगे. दैट इज द स्पेरिकल एबिरेशन. क्रोमेटिक एबिरेशन मीन्स वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट कलर दिखाई देगा. ओके, लाइक दिस. सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 25. तो ड्रॉ द फॉलोइंग बैरियर पोटेंशियल विदाउट बैटरी एंड विथ लो बैटरी वोल्टेज अंडर फॉरवर्ड बायस. ओके, सो फर्स्ट बिट का आंसर क्या होगा, देखो बैरियर पोटेंशियल हमको ड्रॉ करना है विदाउट बैटरी. विदाउट बैटरी मीन्स यहाँ पे तुम्हारा एन साइड में पोटेंशियल क्या होगा, हायर पोटेंशियल, पी साइड पे लोअर पोटेंशियल था. एन साइड को अच्छे से कवर करो, सारा का सारा डायग्राम अवेलेबल है. सो दिस इज द डायग्राम, ये है तुम्हारा वन विदाउट बैटरी. विदाउट बैटरी का मीनिंग क्या है, अनबायसिंग. विदाउट बैटरी ये है तुम्हारा पी एन साइड, ये तुम्हारा पी साइड. यस, सो ये है तुम्हारा भी नॉट बैरियर पोटेंशियल. सो यहाँ पे लिखा है विथ लो बैटरी वोल्टेज अंडर फॉरवर्ड बायस. लो बैटरी वोल्टेज अंडर फॉरवर्ड बायस. सो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस. सो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ये डायग्राम ऐसा होगा. देखो बैरियर पोटेंशियल अभी डिक्रीज हो गया, कितना हुआ, लेट वी इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. सो ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट माइनस वी. सो ये तुम्हारा सेकेंड, दैट मीन्स विथ बैटरी अंडर फॉरवर्ड बायस. यस, देन क्वेश्चन बिट 2, सॉरी बिट टू क्या पूछ रहा है, देखो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन. ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिट 2 के लिए 0 केल्विन पे जो भी सेमीकंडक्टर देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे क्या होगा, वो है कि इंसुलेटर का बिहेवियर शो करेगा. एंड इंसुलेटर में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में अवेलेबल है. सो T इक्वल टू 0 केल्विन में पूछा है, T इक्वल टू 0 केल्विन. सो दीज आर द एनर्जी स्टेट, सपोज these are the energy states in conduction band and this represents energy states in valence band. So at 0 Kelvin all the electrons are in bonded form, all the electrons are in valence band. So these are the electrons in valence band. देखो ये डॉट्स शो कर रहा हूँ मैं, all the electrons are in valence band. So conduction band में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. yes, and जो ये जो गैप दिखाई दे रहा है, this is called energy gap, Eg. यस, तो याद रखो क्वेश्चन भी आ सकता है, T ग्रेटर दैन 0 केल्विन के लिए क्या होगा. सो आई होप इट इज़ क्लियर. यस, तो T ग्रेटर दैन 0 केल्विन पे क्या होगा,
सो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड पे। सो कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन अपेयर होगा, यहाँ पे होल अपेयर होगा। जितना नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल एज पर द कंटेंट। यस, कॉन्सेप्ट ठीक से कवर करो। सो दिस इज योर सेकंड बिट, अबाउट सेकंड बिट वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट बिट नंबर 3, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन देखो। सो इसका डायग्राम क्या होगा बिट 3 के लिए, वही सेम टू सेम। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग को पता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल अवेलेबल है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स आर अवेलेबल। यस, सो उसी हिसाब से डायग्राम ड्रा करोगे। देखो, ये है तुम्हारा वैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, एंड दीज आर द डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। And this gap is called what? Energy gap Eg, and acceptor energy level यहाँ पे है। Yes, this is your EA, acceptor energy level। Yes, so temperature, sorry, रूम टेम्परेचर पूछा है। रूम टेम्परेचर मीन्स व्हाट? रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? 27, नियरली 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स इक्वल टू 27 डिग्री, सॉरी 27 प्लस 273, दैट इज नियरली 300 केल्विन, विच इज़ ग्रेटर दैन 0 केल्विन। सो दैट मीन्स घुमा फिरा करो, पूछ रहा है T ग्रेटर दैन 0 केल्विन पे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम ड्रा करो, एनर्जी बैंड डायग्राम। सो क्या होगा इसमें? देखो, ये जो एनर्जी गैप, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल टू टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ये जो गैप, इसका आंसर क्या है? 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, एंड और एक चीज, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो इसमें ज़्यादा होल होना चाहिए। देखो, इनिशियली ये तुम्हारा होल, एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो जितना बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सपोज बॉन्ड ब्रेक होने से 2 होल क्रिएट हो रहा है। सो उसी हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे चले जाएंगे, एंड रेस्ट एनर्जी स्टेट में देखो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सो डायग्राम से ये पता चल रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ होल मच ग्रेटर दैन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पता होना चाहिए। अभी हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए बस मुझे आंसर को डिस्कशन करना है। ओके, गो थ्रू द चैप्टर प्रॉपर्ली। नेक्स्ट, दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 26। सो ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स मीन्स एन गिवन दे रखा है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, आर गिवन दे रखा है, कैरिंग करेंट आई ऑफ 60 एम्पियर, सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड of magnitude 1 Tesla, B का वैल्यू 1 Tesla, the field lines makes an angle 60 degree with normal of the coil। normal of the coil का मीनिंग क्या है? एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। सो बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री क्या शो कर रहा है? थीटा शो कर रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क, काउंटर टॉर्क मीन्स टॉर्क रिस्टोरिंग, टॉर्क रिस्टोरिंग के बारे में पूछ रहा है। मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम द टर्निंग। अच्छा, काउंटर टॉर्क कितना होगा हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो गिवन क्या दे रखा है? देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 30 एंड रेडियस आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 इंटू 10⁻² मीटर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला, फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विथ नॉर्मल ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट द टॉर्क रिस्टोरिंग पूछा है हमको। सो इन केस ऑफ मूविंग कॉइल कैलकुलेटर MCG, टॉर्क एट इक्विलिब्रियम, टॉर्क रिस्टोरिंग इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड। तो टॉर्क अप्लाइड का आंसर क्या होगा? BINA साइन थीटा। सो बी का आंसर कितना? 1 इंटू करंट कितना है? 6 एम्पियर, सॉरी करंट मेंशन नहीं हुआ है अभी, 6 एम्पियर, करंट इज 6 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स इज 30, एरिया इज पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू
आर का वैल्यू 8 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। नेक्स्ट साइन थीटा दैट इज साइन 30 साइन कितना दे रहा है 60 साइन 60। तो इसका आंसर क्या होगा 6 इंटू 30 इंटू 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर 64 10⁻⁴ साइन 60 इज √3/2। रिमेंबर ये √3/2 का आंसर क्या होगा 1.7/2 और नियरली इसको हम लोग मानेंगे 0.8। यस एंड सॉरी जो 64/7 इसको मान लो नियरली 9। सो नियरली इक्वल टू पे आंसर कितना मिलेगा हमको 6 इंटू 30 इंटू 20 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.8 इज 8/10। सो 10 सो फाइनल आंसर इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा 6 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴। सो इसको सॉल्व करने के बाद 2.8 न्यूटन मीटर। टॉर्क पूछा है ना, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मीटर। सो दिस इज द आंसर। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। Don't skip the calculation and don't think that because of calculation half mark will be provided. No, or without calculation half mark will be deducted. That's your misconception. वो उसी क्वेश्चन पे और एक बिट अवेलेबल है, देखो। वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल वे आर रिप्लेस्ड बाय ए प्लानर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोजेज द सेम एरिया। दैट मीन्स जो सर्कुलर कॉइल को हम लोग चेंज करके एक प्लानर कॉइल ऑफ इरेगुलर शेप, एक प्लेन, ओके, एनक्लोज द सेम एरिया। इसका एरिया जितना भी है इसका भी एरिया सेम टू सेम। तो आंसर चेंज होगा या नहीं। और टॉर्क का वैल्यू कितना होगा BINA साइन थीटा। तो एरिया सेम बराबर, मीन्स टॉर्क भी क्या होगा बराबर होगा। सो ऑप्शन आंसर क्या होगा इसमें, आंसर चेंज नहीं होगा। सो नो, यू हैव टू राइट नो। सो दिस इज द अनदर बिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 26. Now come to question number 27. The refractive index of a material of a concave lens given available. Concave lens is N1. Okay, एक concave lens का refractive index को क्या given दे रखा है, एक concave lens का refractive index is N1. So it is immersed in a medium of refractive index N2. It is immersed in a medium of refractive index N2. So a parallel beam of light is incident on the lens. ओके, एक लेंस के ऊपर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है एज पर द गिवन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन पूछा है ट्रेस द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे व्हेन N2 इक्वल टू N1। N2 एंड N1 क्या है पता है तुमको? N1 क्या है? N1 है एज पर द गिवन क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। So trace the emergent ray if N2 equal to N1, N2 greater than N1, N2 less than N1. So अच्छे से याद रखो। So N2 N1 के साथ बराबर होने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होने से we can't observe the bending। हमको पता है कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, बट व्हेन इसका एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। देखो ये पैरेलल बीम में से विदाउट बेंडिंग चला जाएगा कब, व्हेन N1, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, सराउंडिंग का N2, ये आंसर पॉसिबल है N1 इज इक्वल टू N2 पे। देन वही लेंस पैरेलल बीम जब इंसिडेंट होगा ये लेंस के ऊपर, पैरेलल बीम इंसिडेंट होने से वो डाइवर्जिंग होगा। वो डाइवर्ज हो जाएगा, कब होगा डाइवर्ज? एक डाइवर्जिंग लेंस का बिहेवियर कब शो करेगा? व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये इसका आंसर व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? N1 इज ग्रेटर देन N2, बस। सो ये डाइवर्जिंग होगा। सो N1 लेस देन N2 होने से वो क्या होगा? कन्वर्जिंग इन नेचर। इफ N1 इज लेस देन N2, और वी कैन राइट N लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऐसा होने से सो एक कन्वर्जिंग लेंस का बिहेवियर शो करेगा। दैट मीन्स व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल फॉल, so all the refracted rays will converge towards a single point. This is the answer. So ये जरूरी नहीं कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस ऑलवेज
that will behave as diverging lens. ऐसा जरूरी नहीं. When refractive index of the lens is greater than refractive index of surrounding medium, then it behaves as a diverging lens. Otherwise it behaves as a converging lens. दोनों का refractive index बराबर होने से without any bending refracted ray will pass through the lens. So this is about your question number 27. It is one of the finest question and easiest also. So next is our question number 27. Sorry, question number 28. Sorry. Using Gauss law, derive the expression for the electric field due to an infinitely long straight wire of linear charge density lambda. Completely theoretical question. And show the E versus R graph where E and R have the usual meaning. So इसमें क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. सो इसको जल्दी जल्दी हम लोग को कंप्लीट करना है. बस देखो, ये सपोज इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, दिस इज सपोज पॉजिटिवली इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर. इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा? इट्स द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर. इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा? सिलेंड्रिकल इन नेचर. बस तो इसमें लेंथ ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर इज, लेट इट बी एल. एल इज द लेंथ ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर. एंड कितना एरिया दिखाई दे रहा है तुमको? देखो, ये एक ऊपर वाला एक एरिया, यस, एंड और एक एरिया नीचे में अवेलेबल है. एंड और एक चीज़ क्या है? तीसरा वाला क्या है? थर्ड वन इज अवर कर्व्ड सरफेस एरिया. थर्ड वन इज अवर कर्व्ड सरफेस एरिया. वो एक कर्व्ड सरफेस एरिया. एंड रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर कितना? रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर, लेट इट बी आर. लेट इट बी आर. सो एरिया वेक्टर, इसको ले जाओ फर्स्ट सरफेस, इसको ले जाओ सेकेंड सरफेस, इसको ले जाओ थर्ड सरफेस. सो रेड कलर सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? दिस इज योर A1 वेक्टर. एंड इसका A2 वेक्टर, आउटर नॉर्मल एरिया वेक्टर. एंड इसका देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज योर DA वेक्टर, DA3 वेक्टर. यस. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसमें? E वेक्टर. पॉजिटिव चार्ज से आवे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पे सरफेस 1 पे दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर. एंड यहाँ पे ऑल्सो देखो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर. नाउ वी नो लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच? चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो इसमें चार्ज कितना अवेलेबल है? Q. सो L लेंथ पे कितना चार्ज अवेलेबल है? देखो, L लेंथ वाला गॉसियन सिलेंडर के अंदर सपोज Q चार्ज अवेलेबल है. सो ओके, लेट Q इज द चार्ज अवेलेबल इन L लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर इन द वायर enclosed within the Gaussian cylinder. So lambda is equal to Q by L. That means इसमें फाई टोटल कितना होगा? टोटल फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3. देखो, सो फाई इक्वल टू E A cos थीटा. सो E A1 cos 90 डिग्री प्लस सेकेंड सरफेस देखो एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर E A2 ऑल्सो cos 90 डिग्री. एंड थर्ड में कितना होगा? E DA3 cos 0 डिग्री इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग एक स्मॉल एरिया कंसिडर किए हैं. cos 90 तो 0, ये दोनों टर्म 0 हो गया. देन E को कंस्टेंट बाहर ले आओ, cos 0 इज 1. देन इंटीग्रेशन ऑफ DA3. ये जो इंटीग्रेशन ऑफ DA3, इसका आंसर क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एल. सो 2 पाई आर इंटू एल. सो टोटल फ्लक्स का आंसर क्या है? टोटल फ्लक्स का आंसर वी नो Q डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल. सो इसमें Q का आंसर क्या होगा? Q इज इक्वल टू लैम्बडा इक्वल टू Q बाई एल मीन्स, सो Q का वैल्यू क्या होगा? Q इज इक्वल टू लैम्बडा एल. बस. सो लैम्बडा एल डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल. सो दोनों साइड से एल एल कैंसिल होने के बाद सो E का वैल्यू कितना मिलेगा? अच्छा, और क्या छूट गया? ठीक है, ठीक है. E इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर. सो क्लियरली E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 10 E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर. सो जो ग्राफ पूछा है ना E वर्सेस R के लिए, ओके, तो कैसा होगा? देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बस. So this is about your question number 28.
ये क्वेश्चन नंबर 28 का भी एक और क्वेश्चन अवेलेबल है। यूजिंग गॉस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अच्छा, दिस इज योर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसको भी हम लोग स्पीड पे पे कंप्लीट करेंगे। चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, सपोज चार्ज अवेलेबल, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। सो उसका जो गॉसियन सरफेस तो एक पील बॉक्स होगा। आई होप ये फास्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट तुमको पता है एक्चुअली। एक पील बॉक्स, देखो ये उसका गॉसियन सिलेंडर, और उसके पीछे भी एक शो करना है तुमको बस। तो इसमें कितना सरफेस दिखाई दे रहा है फिर से, यहाँ पे भी देखो दिस सरफेस एंड ये जो वाइट सरफेस एंड और एक क्या है कर्व्ड सरफेस। सो इसमें दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, लेट इट बी ए। इसका एरिया क्या है ए, सपोज ये तुम्हारा छोटा सा एरिया मैं ले रहा हूँ डी ए वेक्टर, यस। एंड इसमें भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज ए। तो सिंपली तीनों फ्लक्स को कैलकुलेट करो। फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। सो इसमें क्या होगा आंसर, पहला में होगा ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 0। थर्ड में क्या होगा जो कर्व सरफेस में ई डी ए कॉस 90 इंटीग्रेशन कॉस 90 इज 0। सो आंसर आ रहा है हमारा कॉस 0 इज 1, सो 2 ई ए। सो व्हाट इज फाई टोटल, फाई टोटल मीन्स यहाँ पे कितना चार्ज अवेलेबल है, लेट क्यू चार्ज अवेलेबल है, कितना एरिया, इसका एरिया ए। सो यू कैन राइट चार्ज बाई इप्सिलॉन नॉट, फाई टोटल इक्वल टू चार्ज पर सॉरी क्यू एनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई ए। तो चार्ज का आंसर क्या होगा, तो सिग्मा का आंसर क्या है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। सो क्यू को हम लोग ये भी लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। सो इंस्टेड ऑफ क्यू वी कैन राइट सिग्मा ए बाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई ए। तो दोनों साइड से ए कैंसिल होने के बाद ई का आंसर क्या आ रहा है, देखो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। सो क्लियरली यहाँ पे पूछा है, देखो शो द ई वर्सेस आर ग्राफ हैविंग दैट यूजुअल मीनिंग। तो ई एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देखो ये फॉर्मूला पे आर अवेलेबल नहीं है, ओके। सो ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। सो ग्राफ कैसा होगा, तो ई वर्सेस आर का ग्राफ पूछा है, सो वी हैव टू ड्रॉ। सो दिस इज ई एंड दिस इज आर। सो ग्राफ इज independent means E is independent of R means this is parallel to straight line parallel to x axis or R axis. I hope the question of this question number 28 is clear to all of you. So with this we have completed section C, all questions available in section C. Now come to section D. So section D is related to CBQ question. So first CBQ is under motion of charged particle in magnetic field. So in this context it is given charged particle or electron is perpendicular to both. The magnetic force is acting on the electron and it is perpendicular to both V naught and B vector as shown in the figure. ठीक है. So in this case velocity vector of charged particle of electron is V naught and it is perpendicular to B vector. Yes. And velocity vector perpendicular to B vector होगा तो पाथ कितना होगा, पाथ होगा हमारा सर्कुलर। यस, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये इसका थ्योरी कंप्लीट करो अच्छे से। तो नाउ डायरेक्टली कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल्ड टू 2v नॉट देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो रेडियस ऑफ द सर्कल का आंसर कितना, रेडियस ऑफ द सर्कल इज mv बाई qb। सो v इज द स्पीड। सो व्हेन v इज इक्वल टू 2v नॉट, v इज इक्वल टू एम वी नॉट बाई क्यू बी। इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन दे रखा है, वी नॉट ना। सो व्हेन v इज इक्वल टू 2v नॉट, सो आर डैश का वैल्यू पूछा है, आर डैश विल बी इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, दैट इज एम इंटू 2v नॉट डिवाइड बाई क्यू बी। सो इसका आंसर 2 एम वी नॉट बाई क्यू बी। एम वी नॉट बाई क्यू बी क्या है, आर। सो दिस विल बी 2r। सो हमारा ये जो 2r नॉट सॉरी 2 स्मॉल r नॉट होगा ये। तो अच्छे तरीके से लिखना है हमको 2r नॉट। एज पर द गिवन क्वेश्चन इट इज द रेडियस इज r नॉट। सो दिस इज 2r नॉट।
Here also we have to mention 2 R naught. So our option number B is our correct answer. This is about the first question. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिट 2. ये भी v इज इक्वल टू वी नॉट, v का वैल्यू चेंज होकर 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट हो जाएगा. तो सो देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 1 रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टी नॉट विल चेंज डैश. सो कैसा से चेंज होगा. अच्छा टाइम पीरियड का आंसर क्या होगा. टाइम पीरियड टी नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. सो एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद 2 पाई आर नॉट, डिस्टेंस स्पीड कितना है वी नॉट. अच्छा दिस कैन बी रिटन 2 पाई बाई वी नॉट. आर नॉट का वैल्यू क्या है एम वी नॉट बाई क्यू बी. अभी वी नॉट कैंसिल हो गया. सो कितना बचा 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी. दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी नॉट. टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी नॉट. दैट मीन्स टाइम पीरियड हाँ वी टू वी नॉट होने से टी नॉट सेम ही रहेगा, टी नॉट चेंज नहीं होगा. यस सो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. नेक्स्ट कम टू थर्ड बिट. ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा मेंशन क्या दिया है देखो गिवन बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप into 10 to the power 2 Tesla, and the acceleration of the particle is found to be a vector equal to xi cap plus 2j cap meter per second square. So find the value of x. We know f vector is equal to how much q v vector cross b vector. So इसमें हमको पता चल रहा है f vector is perpendicular to v vector and f vector is perpendicular to b vector. सो एफ वेक्टर को हम लोग लिखेंगे एम ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. दैट मीन्स एक्सेलरेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. दैट मीन्स इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. सो ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर x इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 होल ब्रैकेट 10 टू द पावर 2. तो इसका आंसर क्या होगा 2x प्लस 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 10 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 0. That means 2x plus 8 equal to 0. So x will be equal to minus 4. X will be equal to minus 4. So minus 4 meter per second square is our correct answer. Next fourth bit के चलो. If the given electron has a velocity not perpendicular to b, bit 4. अच्छा velocity of electron perpendicular to magnetic field होने से क्या होगा तो पाथ हमारा सर्कुलर होगा, पाथ विल बी सर्कुलर. बट इफ वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर. दैट मीन्स लेट द एंगल बी थीटा. सो एंगल थीटा होने से यहाँ पे एक कंपोनेंट मिलेगा हमको वी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट मिलेगा वी साइन थीटा. वो जो वी कॉस थीटा कंपोनेंट उसको लीनियर पाथ में मूव करने के लिए हेल्प करेगा. लेकिन वी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू बी. सो वी साइन थीटा के लिए वो पाथ क्या होगा सर्कुलर. वी कॉस थीटा के लिए लीनियर और स्ट्रेट. सो एज ए होल द पाथ विल बी हेलिकल. सो आंसर इज हेलिकल एज पर द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या पूछा है देखो वही पूछ रहा है. इफ v is not perpendicular to b then trajectory of the electron will be helical. और एक क्वेश्चन अवेलेबल देखो. If electron of charge E is moving parallel to uniform magnetic field, this is your uniform magnetic field, equispaced parallel straight lines. And suppose electron is traveling, this is the velocity vector. So theta कितना 0 डिग्री. So क्वेश्चन पूछा है then the force acting on the electron will be dash. F का आंसर क्या है क्यू वी बी साइन थीटा. सो साइन थीटा के लिए साइन 0. सो आंसर कितना होगा साइन 0 इज 0. सो फोर्स विल बी 0. So 0 force will act. I hope this is clear to all of you. Yes. So now we have completed our question number 29. So next come to question number 30. देखो case based question. So question number 30 that CBQ related to matter wave. That means de Broglie wave.
So we know in case of de Broglie wavelength, lambda is equal to h by p or h by mv. Every moving particle is associated with a wave in it, where m is the mass of the moving particle and v is the speed with which it is moving. So now now come to first question. Question number 1. A particle moves in a closed orbit around the origin due to a force which is directly towards the origin. The de Broglie wavelength of the particle varies cyclically between two values lambda 1 and lambda 2. अच्छा, और एक चीज़ देखो, एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करने से क्या होगा? इफ पाथ इज सर्कुलर, ये पाथ सर्कुलर होने से फायदा क्या होगा हमको? लैम्बडा क्या होगा? लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, दैट मीन्स एच बाई एम बी. सो इफ भी सेम, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स भी सेम होगा. सो भी सेम होने से मास तो कांस्टेंट, सो लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा? नो चेंज. लैम्बडा का वैल्यू चेंज नहीं होगा. सो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पे देखो अवेलेबल है. द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल वेरीज साइक्लिकली बिटवीन टू वैल्यूज लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2. लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2. दैट मीन्स वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं है, मीन्स वेवलेंथ में चेंजेस आ रहा है. दैट मीन्स पाथ सर्कुलर नहीं होगा कंप्लीटली. सो पाथ सर्कुलर नहीं होगा मीन्स द पार्टिकल कुड बी मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत. एंड द पार्टिकल कुड बी मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सेकेंड ऑप्शन भी गलत. यस, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी से कोई ना कोई आंसर होगा. व्हेन द de Broglie wavelength is lambda 1 द पार्टिकल इज नियरर द ओरिजिन. एंड फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है व्हेन द de Broglie wavelength is lambda 2 द पार्टिकल इज नियरर द ओरिजिन. सो हमको कैसे पता चलेगा व्हिच वन इज करेक्ट? नाउ सी. सो इन केस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेटिस्फाई होगा. सो पाथ क्या दिखाई दे रहा है अभी? ये पाथ सर्कुलर. सो मैं थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट वे से अप्रोच कर रहा हूँ, डिफरेंट वे से इसको सॉल्व कर रहा हूँ. देखो डिफरेंट वे से कैसे सॉल्व होगा, तो थोड़ा फील करो मैं क्या बोलने वाला हूँ. सॉरी, पाथ एलिप्टिकल, सर्कुलर नहीं, पाथ इज एलिप्टिकल. पाथ इज एलिप्टिकल. सो एलिप्टिकल पाथ में वी नो, सपोज दिस इज द सन पोजिशन. यस, देखो, एंड यहाँ पे प्लैनेट, यहाँ पे प्लैनेट का पोजीशन देखो. ये जो पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन प्लैनेट, द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ इन एन एलिप्स, द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू सन, दैट नियरेस्ट पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एपोजी. सॉरी, दैट इज कॉल्ड पेरिजी. दैट इज कॉल्ड पेरिजी. यस, एंड फार्देस्ट पोजीशन ऑफ प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू सन, दैट इज कॉल्ड apogee or perihelion, aphelion. Okay, this is not related to this question. Okay, you are thinking like that, but देखो कैसे सॉल्व होगा, इजीली हो जाएगा. सो आज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज mvr, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी, सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, वी कैन से. सो जितना r ज़्यादा होगा तो v इतना कम होगा. सो आर देखो, ये है तुम्हारा R1, ये है तुम्हारा R2. यहाँ पे R कम, दैट मीन्स उसमें V1 क्या होगा? V ग्रेटर, R2 ग्रेटर है, सो V उसका स्मॉलर होगा, लेस होगा, सो V इज लेस. अच्छा, उसी हिसाब से हम लोग इसको मान सकते हैं, जो पार्टिकल मूव्स इन ए क्लोज्ड ऑर्बिट अराउंड ए ओरिजिन, अराउंड द ओरिजिन. जैसे मान लो एलिप्टिकल पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है अभी. ओके, प्लैनेट को पार्टिकल मान लो बस. सो इन दिस केस पेरिजी पे क्या होगा? स्पीड मोर मीन्स वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी. सो लैम्बडा एंड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो इसमें वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ, सॉरी, लैम्बडा इसमें कम होगा, यहाँ पे लैम्बडा ज़्यादा होगा. यस. अच्छा, क्वेश्चन दे रखा है लैम्बडा 1 इज ग्रेटर दैन लैम्बडा 2. सो इफ लैम्बडा 1 इज ग्रेटर दैन लैम्बडा 2, सो व्हिच वन इज ग्रेटर? लैम्बडा 1 इज ग्रेटर. सो यहाँ पे ये होगा तुम्हारा लैम्बडा 1, जो ग्रेटर वैल्यू है. एंड जो हमारा लैम्बडा वैल्यू स्मॉलर, दैट इज योर लैम्बडा 2. देखो, सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अभी? व्हेन द de Broglie wavelength इज लैम्बडा 2 द पार्टिकल इज नियरर द ओरिजिन, ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहा है. देखो वही चीज़,
व्हेन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्बडा 2 द पार्टिकल इज नियरर द ओरिजिन. यस, सो हमको ओरिजिन मान लो. सो आवर ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर एज पर द क्वेश्चन. ऐसे ही अप्रोच करोगे इसको. क्लियर. सो नेक्स्ट कम टू सेकेंड बिट क्या पूछ रहा है देखो. Which of the following figures represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? So lambda is equal to, we know, h by p. So lambda proportional to 1 by p. That means they are inversely related. So ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा. सिंपल. तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर. दिस इज योर अबाउट योर फर्स्ट बिट एंड second bit. I hope it is clear to all of you. Now question number 3, the bit 3, the de Broglie wavelength of an electron moving with a speed. अच्छा, de Broglie wavelength of electron पूछ रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए. लैम्बडा इलेक्ट्रॉन कितना होगा इफ इट स्पीड इज 6.6 इंटू 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. सो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो एच का वैल्यू कितना 6.6 10 to the power -34 divided by mass of electron 9.1 10 to the power -31 into 6.6 10 to the power 5. तो सॉल्व करने के बाद कितना होगा देखो. तो कैसे सॉल्व करोगे देखो, ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए जैसे कि 10 to the power समथिंग पे आंसर आना चाहिए हमारा. 10 to the power समथिंग. तो क्या करेंगे इसमें 6.6 तो कैंसिल हो गया. अभी 10 to the power 1 by 9.1 1 by 9.1 को 1 by 9 लिख रहा हूँ मैं इंटू 10 to the power कितना आ रहा है -34 देन -5 प्लस 31. सो -34 -5 इज -39 -39 प्लस 31 दैट इज -8. सो 1 by 9 को मैं लिख रहा हूँ 0.1 इंटू 10 to the power -8. सो 0.1 मीन्स 10 to the power -1. सो दिस इज नियरली 10 to the power -9. आई होप इट इज क्लियर. उतना ही मीटर. So answer is 10 to the power -9 meter. Option B is your correct answer for this third bit. This is about your bit 3. Next question 4. The wavelength of the photon is proportional to. अच्छा, फोर्थ बिट. फोटोन का स्पीड कितना, स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन इज c. सो वो पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू. अच्छा, फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिलेशन क्या है वेवलेंथ का. सो स्पीड ऑफ फोटोन इज c. वी नो c इज इक्वल टू f लैम्बडा which implies lambda is equal to c by f, or we can write c by nu. So lambda is proportional to 1 by nu. So option D is your correct answer. Yes. Next वो और वाला क्वेश्चन देखो, उसका और वाला क्वेश्चन. If we consider electron and photons of the same wavelength, lambda electron equal to lambda photon, then they will have same energy, velocity, momentum, angular momentum. Lambda is equal to h by p. So h by lambda electron equal to h by momentum electron equal to h by momentum of photon. So cancel करने के बाद momentum of electron equal to momentum of photon. So they will have same momentum. So option C is our correct answer. So with this we have completed section D, both CBQ questions. Next, that is our last section, that is your section E. Let's solve question number 31. So let's come to section E. So question number 31, state Ohm's law in microscopic form. Microscopic form means it is asking about Ohm's law in vector form. Yes, and derive an appropriate expression for it. Okay. So कैसे derive होगा देखो, vector form of Ohm's law. So first bit, let us consider this is your conductor of length L with uniform cross-sectional area A and potential difference across its two ends is V. Yes. So this is our conductor with uniform cross-sectional area. Uniform cross-sectional area. So what is the vector form of Ohm's law? J is equal to sigma E. J is your current density, sigma is your conductivity and E is the electric field applied. So इसमें electric field कितना अप्लाई हो रहा है, E दोनों एंड पे. So we know V is equal to IR. देखो V is equal to IR and V is equal to I into R का वैल्यू कितना है, रो L बाई ए.
So simply I can write it as V is equal to I by A into rho L. Yes, so V by rho L कितना होगा, I by A. ये जो I by A में लिखा हूँ उसको हम लोग लिखेंगे करंट डेंसिटी, करंट पर एरिया, करंट डेंसिटी इज J. सो J का आंसर क्या मिल रहा है हमको, J इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे 1 by rho इंटू V by L. So finally you can write J is equal to 1 by rho is sigma, V by L is E is equal to dV by dr formula. So in vector form it can written in vector form, J vector का आंसर कितना होगा, J vector equal to sigma into E vector. This is the vector form of Ohm's law or microscopic form. In another way we can also derive this thing, other method उसका क्या है देखो, we know I is equal to VDENA, current and drift velocity relation. So we can write I by A is equal to how much, VDEN. So I by A is J, VD का आंसर क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाई एम, रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ इंटू ई इंटू एन. So now we can write it as J is equal to simply we can write E square n tau by m into E. So but we know what is the resistivity. Resistivity formula is m by n square tau. So 1 by rho that is called sigma, इसका आंसर क्या होगा, n square tau by m. So instead of this n square tau by m we can write sigma into E. Yes, now in vector form we can write, in vector form it will be J vector is equal to sigma into E vector. I hope this part is clear to all of you. Next, in second bit it is asking for a current carrying conductor of changing diameter as shown below, how does each of the following quantity vary along the two ends of the conductor with area of cross section A1 and A2. ये क्या दे रखा है, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वाला एक कंडक्टर दे रखा है, गिवन एग्जाम्पल फॉर इच. ऐसा करंट डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्रॉप, ये तीनों कैसे वेरी होगा, ओके, इन दिस कंडक्टर. देखो, सो फर्स्ट थिंग, ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वाला एक कंडक्टर, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है A1, दिस इज A2, दैट मीन्स कम्प्लीटली A1 इज लेस दैन A2. यस, सो एग्जाम्पल के साथ हम लोग को लिखना है. यस, सो एग्जाम्पल क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ वाटर, ये एक पाइप कंसिडर करो. पाइप कंसिडर करने से क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग इजीली, क्योंकि चार्ज को तो हम लोग देख नहीं पाएंगे. सो पाइप कंसिडर करो एंड अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग और लिविंग द पाइप, ऐसे कंसिडर करो. सो अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इन A1 साइड in time t second is equals to amount of water leaving from A2 in time t second also. That means we can say from this example, for bit A we can write current value remains same. Yes, water is the flowing quantity, in conductor चार्ज इज द फ्लोइंग क्वांटिटी, सो करेंट रिमेन्स सेम. फर्स्ट बिट का आंसर मिल गया हमको, हाउ डज करेंट विल वेरी. नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करेंट डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्रॉप कैसे वेरी होगा. देखो, करेंट डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्रॉप, सेकेंड बिट करेंट डेंसिटी के लिए, वो तो एक सिंपल सा चीज़. देखो, करेंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A. सो करेंट तो कॉन्स्टेंट, सो करेंट कॉन्स्टेंट बाई A, दैट मीन्स J प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A. So as A1 is less than A2, which implies J1 is greater than J2. करंट डेंसिटी फर्स्ट सेक्शन पे ज़्यादा होगा. नेक्स्ट किसके बारे में पूछ रहे हैं, वो पोटेंशियल ड्रॉप. सी, पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में देखो. पोटेंशियल ड्रॉप V वी नो, V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर को हम लोग लिखेंगे रो एल बाई ए. सो न्यूमरेटर में जो भी तीनों है वो है कॉन्स्टेंट. सो सिंपली क्या पता चल रहा है, V proportional to 1 by A. Yes, A is the area of cross section. So as A1 is less than A2, which implies potential drop at 1 is greater than potential drop at 2. Yes, I think this question is clear to all of you.
यस, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 31। इसका भी एक और क्वेश्चन है। सो और क्वेश्चन क्या है देखो, न्यू ईयर के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं सब लोग। सो डिस्ट्रैक्शन को हटाकर बस पढ़ाई करते चलो। देखो, सो स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। सो किरचॉफ्स में कितना लॉ है अवेलेबल है? सर्किट लॉ, 2 सर्किट लॉ, KCL एंड KVL। तो उसके हिसाब से स्टेट एंड एक्सप्लेन, बस उसका स्टेटमेंट लिखना है हमको। ओके, नथिंग एल्स। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द सेकेंड बिट क्वेश्चन। ओके, देखो, सो we will start from first law, नहीं, first bit, Kirchhoff's first law। Kirchhoff's first law का अदर नेम क्या है? KCL, Kirchhoff's current law, और it is called junction law। It is also called junction law। Yes, and remember it is based on conservation of charge। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, based on conservation of charge, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आधारित है। सो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है देखो, एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। नहीं, इसको स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट में हम लोग ये लिखेंगे, द टोटल करेंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0 इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। In any electrical network। Yes, plus this is about your Kirchhoff's first law। Then come to Kirchhoff's second law, KVL। Kirchhoff's second law, it is also called KVL, or it is called mesh law। It is also called mesh law, or it is called loop law। Yes, सो ये किसके ऊपर आधारित है? इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका स्टेटमेंट क्या है? समेशन ऑफ टोटल चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज लूप इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इन ए क्लोज लूप ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ऐसा लिखेंगे हम लोग, इन ए क्लोज लूप ऑफ एनी electrical network, the total change in potential difference is 0। yes, ऐसे ही लिख पाओगे बस। दिस इज अबाउट योर फर्स्ट बिट। नेक्स्ट सेकेंड बिट क्या बोल रहा है देखो, इन द गिवन नेटवर्क शोन इन द फिगर यूज किरचॉफ्स लॉ टू कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस 4 ओम। जहाँ पे तुम लोग को 4 ओम वाला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उसमें कितना पावर लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करो। देखो क्या करना चाहिए इसमें हमको, फर्स्ट सी, यस। सो इसमें दिखाई दे रहा है नेटवर्क, तो ऐसे ड्रा कर दोगे। देखो ये तुम्हारा बिग बार मीन्स हाई पोटेंशियल, स्मॉल बार मीन्स लो पोटेंशियल। यहाँ पे ये तुम्हारा हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन दे रखा है तुमको। सो 2 ओम रजिस्टर पे करंट ऐसे पास हो रहा है I1। सो ये तुम्हारा हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो 4 ओम रजिस्टर, इसमें कितना करंट जा रहा है? I1 प्लस I2। कौन सा डायरेक्शन दिखाई दे रहा है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अभी तुम लोग को ऐसे लूप ड्रा करना है बच्चा ये। तो दिस इज लूप 1, दिस इज सपोज लूप 2। सो इन लूप 1 पे क्या दिखाई दे रहा है देखो, तो 12 वोल्ट लोअर टू हायर, जो पाथ में ड्रा कर रहा हूँ उसी पाथ में तुम लोग को चलना चाहिए। सो लोअर टू हायर इंक्रीज, दैट इज प्लस 12। देन 4 ओम पे हम लोग हायर टू लोअर ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं, हायर टू लोअर, दैट मीन्स डिक्रीज हो गया। सो माइनस करेंट इंटू रेजिस्टेंस I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना? 4। I1 प्लस I2 रेजिस्टेंस का वैल्यू। देन देखो ये लूप में ऐसे
मूव करेंगे हम लोग 2 ओम रजिस्टर हायर टू लोअर फिर से, दैट मीन्स डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स -2 इंटू करेंट कितना है इसमें I1 इक्वल टू 0। सेम इन केस ऑफ लूप 2 किरचॉफ्स आना चाहिए, अदरवाइज यू कैन सॉल्व। देन देखो यहाँ पे 4 ओम पे लो से लेकर हाई मूव कर रहे हो, दैट मीन्स इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स +4 इंटू I1 + I2 करेंट इंटू रेजिस्टेंस। देन यहाँ पे देखो हायर टू लोअर माइनस डिक्रीज हो गया, सो -6 वोल्ट इक्वल टू 0। सो इसमें I1 + I2 का वैल्यू कितना हुआ 6/4 दैट इज 3/2 एम्पियर। सो क्वेश्चन क्या दे रखा है, पावर लॉस इन 4 ओम रजिस्टर। ये जो 4 ओम रजिस्टर दिखाई दे रहा है तुमको, इसमें कितना पावर लॉस। सो पावर लॉस का फॉर्मूला देखो, इसमें करंट अवेलेबल है I1 + I2 एंड उसका रेजिस्टेंस कितना 4 ओम। सो पावर लॉस को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। P लॉस इज इक्वल टू I²R, इसमें करंट जा रहा है I1 + I2 उसका होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R, दैट मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर इंटू R का वैल्यू कितना 4, दैट मीन्स 9/4 इंटू 4, दैट मीन्स 9 वाट। यस, so this is the power loss through power loss across 4 ohm resistor. This is about your question number 31, including our question we have completed bit 1 bit 2. Yes, next we will discuss question number 32. Yes, so in case of 32 this is one question, इसका bit 2 भी अवेलेबल है। bit 2 is not our question, इसके साथ एक न्यूमेरिकल अवेलेबल है, मैं पार्ट करके सॉल्व करूँगा। With the help of label diagram, describe the principle and working of an AC generator. Okay, and hence obtain an expression for the instantaneous value of EMF generated. Yes, so AC generator क्या है पता है हमको। AC generator it converts mechanical energy to electrical energy. And what is the principle of AC generator? Its principle is it works on the principle of electromagnetic induction. Yes, तो उसका डायग्राम क्या होगा देखो, नेक्स्ट इज डायग्राम, उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो डायग्राम पे हम लोग सिंपल सा डायग्राम शो करूँगा मैं। ये तुम्हारा एक मैग्नेट, सॉरी ये दोनों मैग्नेट के अंदर आर्मेचर कॉइल अवेलेबल है। यस, देखो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, यहाँ पे तुम्हारा आर्मेचर कॉइल एंड ये क्या है, दिस इज योर एक्सल। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पे वो आर्मेचर अभी रोटेट करेगा। इसका दो एंड में देखो क्या अटैच हुआ है, एक स्लिप रिंग, यहाँ पे एक स्लिप रिंग, दिस इज अनदर स्लिप रिंग S1, स्लिप रिंग S2 एंड ये स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रश, दिस इज कार्बन ब्रश B1 एंड इसके साथ भी कार्बन ब्रश B2। देन यहाँ पे अटैच हुआ है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, बस। सो नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो इसका वर्किंग देखो, सिंपल सा वर्किंग। ऑन रोटेशन व्हाट विल हैपन, ऑन रोटेशन फ्लक्स चेंजेस होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। ओके, ये जो फ्लक्स दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के बाद EMF विल इंड्यूस, तो EMF इज इंड्यूस्ड। EMF इंड्यूस होने के बाद क्या होगा, करंट विल इंड्यूस्ड, सो करंट इज इंड्यूस्ड। सिंपल, फिनिश्ड। सो यहाँ पे n क्या है, लेट n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो लेट n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर कॉइल। देन इसमें हम लोग क्या लिखना चाहिए अभी, लेट at any instant of time coil rotates
about an angle theta, about an angle theta. Yes, so omega equal to angular velocity equal to angular displacement divided by time. So थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. सो फ्लक्स थ्रो वन टर्न कितना होगा बोलो, फ्लक्स थ्रो वन टर्न. सो आंसर होगा हमारा फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा विच कैन बी रिटन एज बी ए कॉस ओमेगा टी. दिस इज फ्लक्स थ्रो वन टर्न. सो एक ही टर्न में फ्लक्स कैलकुलेट हो गया. मैं अभी कैलकुलेट करूँगा फ्लक्स थ्रो एन टर्न्स कितना होगा. सो 10 फ्लक्स थ्रो एन टर्न्स पे फ्लक्स कितना होगा. सो फाई टोटल इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी. सो ये में इंड्यूस्ड का आंसर कितना होगा, माइनस डी फाई टोटल बाई डी टी. सो यहाँ पे माइनस एन बी ए तो कॉन्स्टेंट, देन डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एन बी ए ओमेगा बाहर आ गया देखो, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, एक्स्ट्रा टर्म तो बाहर आ जाएगा. सो ये हो जाएगा हमारा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. इसको बाद सिंपली हम लोग लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस्ड, ई नॉट साइन ओमेगा टी. यस, सो लेट आर इज द, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ई एम एफ जनरेटेड. एक्सप्रेशन हो गया, फिनिश्ड. दिस इज आवर आंसर. दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस ई एम एफ induced EMF generated. Yes, so as per the question you have to write up to this thing. So ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगा. ग्राफ ऐसे ड्रा करोगे, साइनोसॉइडल कर्व. यस, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस ई नॉट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई नॉट. यस, दिस इज एन एडिशनल थिंग. तो वो पूछा नहीं है अभी. नेक्स्ट इसमें सेकेंड बिट में क्या पूछा है देखो, ये उसका सेकेंड बिट. इसका भी और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 पे. तो द कॉइल ऑफ एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स ऑफ वायर. दैट मीन्स गिवन दे रखा है एन इक्वल टू 100. ईच एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर. ईच ऑफ एरिया ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 100 ओम. गिवन दे रहा है आर इज इक्वल टू 100 ओम. द कॉइल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला. बी इज इक्वल टू 0.8 टेस्ला परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 60 रेडियन पर सेकेंड. यहाँ पे देखो 60 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड दे रखा है, एंगुलर स्पीड 60 रेडियन पर सेकेंड. दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 60 रेड पर सेकेंड. यस, क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड एंड द पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल. ओके, सो ई मैक्स एंड पावर डिसिपेटेड. ओके, अच्छा ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का आंसर क्या था, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ई मैक्स इक्वल टू एन बी ए ओमेगा कॉन्स्टेंट एंड साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1. सो आंसर विल बी एन बी ए ओमेगा. सो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर बस. सो एन का आंसर कितना होगा, एन इज योर 100, बी इज योर 0.8 मीन्स 8/10, एरिया 0.5 इंस 1/2, ओमेगा इज 60. सो यहाँ पे हमको मिल रहा है 2400 वोल्ट. देन पूछा है तुमको पावर डिसिपेटेड. पावर डिसिपेटेड, सो पावर का फॉर्मूला I² R V² VI. सो यू कैन राइट पावर डिसिपेटेड इक्वल टू I मैक्स इंटू ई मैक्स. ऑब्वियसली, सो आई मैक्स का वैल्यू तो हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं किए हैं. करेंट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, यस, वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर. सो 2400 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 100 ओम. सो आंसर कितना आया, 24 एम्पियर. यस, सो इसमें आई मैक्स का वैल्यू 24 इंटू 2400. सो फाइनल आंसर 57600 वाट. 20 करने से भी वही सेम रिजल्ट मिलेगा हमको. दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 32. नाउ विल सॉल्व इट्स और बिट और क्वेश्चन. देखो
ड्रॉ द डायग्राम, ये 32 का और 32, ये जो फर्स्ट बिट इसके नीचे भी एक और एक बिट भी है न्यूमेरिकल। सो इसके बाद में उसको सॉल्व कर दूँगा। सो क्वेश्चन क्या दे रहा है देखो। सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए डिवाइस which converts to decrease the high AC voltage to low AC voltage। अच्छा, high AC voltage to low AC voltage, that means ये कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो उसका डायग्राम हमको ड्रा करना चाहिए। देखो कैसे ड्रा करेंगे हम लोग। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हाई एसी वोल्टेज इट इज़ द इनपुट एंड इट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है, सेकेंडरी, इनपुट में प्राइमरी। दैट मीन्स हाई एसी इनपुट, दैट मीन्स ईपी इज ग्रेटर देन ईएस। सो ईएस बाई ईपी कितना होगा, ईएस इज लेस देन ईपी, विच इम्प्लाइज ईएस बाई ईपी इज लेस देन 1। ईएस बाई ईपी किसके साथ बराबर, एनएस बाई एनपी इज लेस देन 1, दैट मीन्स एनएस इज लेस देन एनपी। सो ट्रांसफार्मर ऐसे ड्रा करोगे जैसे कि प्राइमरी पे ज़्यादा टर्न्स होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, वैसे ही लिखोगे। सो ड्रॉ द डायग्राम एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन। ओके, सो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले देखो ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का ही क्वेश्चन है। सो डिवाइस विच अल्टर्स वोल्टेज, डिवाइस विच अल्टर्स वोल्टेज, अल्टर्स मीन्स चेंज करेगा वो, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऐसा प्रिंसिपल उसका क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। देन वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, ऐसा डायग्राम ड्रॉ करोगे जैसे कि प्राइमरी पे ज़्यादा टर्न होना चाहिए। यस, so now these are the turns in primary sorry, yes, this is input and secondary पे less number of turns होना चाहिए, this is output। yes, this is input, this is output ऐसी। अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो एरिया, उसका एरिया कितना, ए, सेकेंडरी में भी इसका एरिया क्या है। अच्छा, फ्लक्स थ्रो ईच टर्न, ईच कॉल पे फ्लक्स कितना, फ्लाई। सो यहाँ पे भी ईच टर्न पे फ्लक्स फाई। तो इसको लिखना चाहिए बस थोड़ा। तो क्या लिखना चाहिए अभी, सो लेट, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना, एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एन एस। सो हियर एन पी इज ग्रेटर देन एन एस। यस, सो लेट फाई is flux through each coil, phi is flux through each coil। और क्या है देखो, ए क्या है, एरिया ऑफ ईच कॉइल। देन एन एस एंड एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी रेस्पेक्टिवली। यस, देखो उसका डेरिवेशन को कैसे प्रोसीड करोगे, मैं पार्ट करके बस लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन प्राइमरी एंड उस साइड में मैं लिख रहा हूँ इन सेकेंडरी। 10। सो फ्लक्स थ्रो ईच कॉइल कितना होगा, फ्लक्स थ्रो ईच कॉइल दैट इज 5। सेकेंडरी में भी फ्लक्स थ्रो ईच कॉइल इज इक्वल टू 5। देन टोटल फ्लक्स कितना प्राइमरी पे, टोटल फ्लक्स 5 टोटल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इंटू फ्लक्स थ्रो ईच कॉइल। देन टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी विल बी 5 टोटल इक्वल टू एन एस इंटू 5। ये में इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कितना होगा, ये में इंड्यूस्ड इन प्राइमरी दैट मीन्स ई पी इक्वल टू माइनस डी फाई टोटल बाई डी टी, दैट मीन्स माइनस डी बाई डी टी, फाई टोटल इज एन पी इंटू फाई। सो आंसर विल बी ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी इंटू डी फाई बाई डी टी।
This is the value of EP. Like this we can write EMF induced in secondary. EMF induced in secondary कितना होगा, ES माइनस डी फाई टोटल बाई डी टी. सो माइनस डी बाई डी टी, फाई टोटल का वैल्यू NS इंटू फाई. सो आंसर इज ES इज इक्वल टू माइनस NS इंटू डी फाई बाई डी टी. यस. So now equation this is 2, this is equation 1. So now dividing equation 2 by equation 1. So क्या होगा इसमें, so equation 2 by equation 1, that means ES by EP is equal to ES is minus NS into d phi by dt divided by minus NP into d phi by dt. So कैंसिल होने के बाद क्या मिल रहा है, ES by EP is equal to NS by NP. This is your answer. Yes. So in case of an ideal transformer we know power input equal to power output. So इसको भी लिखना चाहिए. In case of an ideal transformer we know power input equal to power output. That means power input कितना होगा, EP IP is equal to ES IS. सो इसमें ES बाई EP का आंसर क्या हो रहा है, IS बाई IP बाई IS. यस. सो फ्रॉम दिस नाउ वी कैन कम्बाइनली वी कैन राइट दस ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू IP बाई IS. यस. एंड एफिशिएंसी का आंसर क्या होगा इसमें, एफिशिएंसी व्हिच इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. Efficiency eta equal to output power by input power into 100%. So this first thing you have to write as per the question. Okay, as per the demand of the question you have to write up all these things. Draw the AC diagram, draw the diagram of a device which is used to decrease high AC voltage to low AC voltage. Step down transformer हो गया. Deduce the expression for its working principle and explain. Okay, now come to its second bit. इसका सेकेंड बिट क्या डिमांड कर रहा है, देखो. ए स्मॉल टाउन विथ ए डिमांड ऑफ 1200 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. दिस इज सपोज द टाउन. ये स्मॉल टाउन ये डिमांड कर रहा है 1200 किलोवाट पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर at 220 volt. And it is situated at 20 km away from the electric plant. Suppose this is the location of electric plant. This is the location of electric plant 20 किलोमीटर पर आवे. सो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर अवेलेबल है. कहाँ पे, यहाँ पे जो पावर प्लांट. देन जो टाउन के पास भी हमारा एक ट्रांसफार्मर अवेलेबल है. बस. लेकिन मैं एक जनरल डायग्राम कर रहा हूँ अभी. व्हिच वन इज स्टेप डाउन स्टेप अप पता कर लेगा. वेट. सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर से. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर देखो 20 किलोमीटर आवे. सो यहाँ से यहाँ तक प्लांट से लेकर टाउन तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर. एंड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट. जो प्लांट पावर जनरेट कर रहा है 440 वोल्ट पे. यस. देन द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर. एक है तुम्हारा लाइव वायर, दूसरा क्या है न्यूट्रल वायर. सो ये तो सपोज लाइव एंड वो रिटर्न करके आएगा वो न्यूट्रल से. सो ये तुम्हारा 0.5 ओम पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम. यस. देन द टाउन गेट्स द पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू ए 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. दैट मीन्स यहाँ पे क्या अवेलेबल है, यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अवेलेबल है. स्टेप डाउन क्या करेगा रे, स्टेप डाउन हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. देखो यहाँ पे गिवन अवेलेबल है 4000 वोल्ट टू 220 वोल्ट. दैट मीन्स यहाँ पे ये जो प्राइमरी ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी 4000 वोल्ट एंड इसका सेकेंडरी क्या है 220 वोल्ट. यस, वही तो लिखा हूँ मैं 220 वोल्ट. यस. सो एट ए सबस्टेशन इन द टाउन एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट. कितना पावर लॉस हो रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट. अच्छा. सो देखो आइडियल ट्रांसफर में हमको पता है पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट. सो यहाँ पे पावर इनपुट
यहाँ पे पावर आउटपुट, सो आउटपुट पावर कितना, सो पी आउट इक्वल टू दे रखा है 1200 किलोवाट। सो पावर आउटपुट इक्वल टू पावर इनपुट, पावर इनपुट क्या है, पावर इनपुट इक्वल टू वी इनपुट इंटू करेंट इनपुट, दैट इज इक्वल टू 1200 इंटू किलो मीन्स 10⁻³ वाट। सो वोल्टेज इनपुट कितना 4000 वोल्ट लिखा हूँ मैं, सो 4000 मीन्स 4 इंटू 10⁻³ इंटू कितना करेंट इक्वल टू 12 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ 10⁻³ तो कैंसिल हो गया। सो करेंट का वैल्यू कितना मिल रहा है 12 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 4। सो आंसर आ रहा है 3 इंटू 10⁻² एम्पियर। दैट मीन्स कितना करंट जा रहा है रे, आई इज इक्वल टू 300 एम्पियर। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पावर कितना लॉस हुआ है। सो रेजिस्टेंस पर किलोमीटर कितना 0.5 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, डोंट थिंक दैट 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, गलत हो जाएगा। सो 20 किलोमीटर लाइव के लिए, 20 किलोमीटर भी न्यूट्रल के लिए। यस वैसे कंप्लीट पाथ फॉलो कर रहा है नहीं। सो टोटल डिस्टेंस कितना 40 किलोमीटर। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो, टोटल रेजिस्टेंस। सो 1 किलोमीटर के लिए 0.5 ओम। सो 40 किलोमीटर के लिए 40 इंटू 0.5 मीन्स 1/2 दैट इज 20 ओम। ये हो गया तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट कितना 300 एम्पियर। सो पावर लॉस कितना होगा, पी लॉस इक्वल टू I²R। I²R मीन्स 300 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 20। यस सो कितना आ रहा है देखो, 300 मीन्स 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू 20। यस 18 इंटू 10⁵ वाट, और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1800 किलोवाट। दिस इज द टोटल पावर लॉस। यस क्वेश्चन पूछेगा सपोज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है टोटल पावर कितना, टोटल प्लांट कितना पावर जनरेट कर रहा है, टोटल पावर प्लांट मस्ट सप्लाई। सो फाइंड पी टोटल दैट प्लांट मस्ट सप्लाई, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, सो पावर सप्लाई का आंसर क्या होगा, पावर सप्लाई इक्वल टू कितना लॉस हुआ प्लस कितना रिसीव हुआ। बस लॉस कितना हो रहा है 1800 किलोवाट, रिसीव कितना हो रहा है, टाउन रिसीव कर रहा है 1200 किलोवाट, दैट मीन्स कुल मिलाकर 3000 किलोवाट। ये होगा आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ पावर सप्लाई। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड बिट क्वेश्चन। सो विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 32। नाउ ओनली क्वेश्चन नंबर 33 इज लेफ्ट। ऑलरेडी 30 मिनट्स हमारे पास है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का टाइम कितना 3 आवर्स। सो एक्सप्लेन करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। यस नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन इज ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। फाइनल इमेज कौन प्रोड्यूस करेगा, आईपीस लेंस। सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। देखो उसका डायग्राम को ड्रॉ करना चाहिए हमको, वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट सबके लिए। देखो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ बस उसको फॉलो करो। सो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, एंड यहाँ पे मैं मान रहा हूँ दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस में यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है देखो, एंड ये है उसका इमेज। सपोज ये है उसका इमेज, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। सो इमेज कैसे फॉर्म होगा देखो, सो ऐसे ये रे passes through the optical center and और एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बस फोकस देकर बस यहाँ पे मीट करेगा। तो जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करके जा रहा है ना उसको बस इंडिकेट कर दो व्हाट, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यस एंड दिस इज योर इमेज, ये हमारा इमेज। दिस इज ऑब्जेक्ट इज ए बी, एंड इमेज का आंसर क्या होगा, इमेज का नेम A डैश B डैश। देन क्या करना चाहिए इसमें, देखो ट्रिक देखो, यहाँ पे मैं इमेज फॉर्म कर रहा हूँ, बस डॉटेड लाइन। यस सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करके ऐसे एक्सटेंड कर दूँगा। देखो उसके बाद फ़ायदा क्या होगा, देखो वेट,
और जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करके जा रहा है ना, वहीं पे दूसरा लेंस हम लोग क्रिएट कर देंगे। ये हमारा आई पीस लेंस। देन यहाँ पे एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। बस यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको ज्वाइन करो। इसको ज्वाइन करने के बाद बस एक्सटेंड कर देना चाहिए। वो जिस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट क्या है, फोकस ऑफ द आई पीस। देखो आराम से डायग्राम फाइनली कंप्लीट हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करोगे, यहाँ पे इसको भी ज्वाइन करोगे, बस। तो बस इसमें आरो मार्क देना चाहिए हमको, आरो मार्क इज पेंडिंग। बस देखो फाइनल डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा इजीली। देखो हो रहा है ठीक से। दिस पॉइंट इज ए डबल डैश, दिस इज बी डबल डैश। बस तो इसमें मैं क्या बोलने वाला हूँ, देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो पिंक कलर वाला दिस इज योर आई पीस लेंस। देखो एंड ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑब्जेक्टिव। देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ये क्या लिखेंगे हम लोग, इमेज डिस्टेंस VO। देन ये ऑब्जेक्ट एंड आई पीस लेंस है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग मानेंगे UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस लेंस। एंड इमेज से लेकर आई पीस लेंस का डिस्टेंस ये क्या है, इमेज डिस्टेंस VE, इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस लेंस। क्वेश्चन के हिसाब से वो डी पे फॉर्मेशन हो रहा है, इसको D लिख देना चाहिए बस। और क्या लिखना चाहिए हमको, हाँ जो A डैश B डैश फॉर्म होगा, ओके, वो ऐसे फॉर्म होगा जैसे कि वो आई पीस लेंस का फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के अंदर होगा। तो कोई भी ऐसे का एक पॉइंट को ले जाएंगे हम लोग, ऐसा एक अननोन पॉइंट, देखो ये पॉइंट, बस मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, फोकस ऑफ द आई पीस लेंस, फिनिश्ड। सो ये जो दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। इसका आंसर क्या होगा, VO मैग्नीट्यूड प्लस UE मैग्नीट्यूड, बस दिस मच। सो दिस इज अबाउट योर डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप इट इज क्लियर। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जर्वर, ये है तुम्हारा ऑब्जर्वर। देखो कैसे कंप्लीट हो गया, 2-3 मिनट में हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओके सो देखो फाइनल इमेज जितना एंगल फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू आई, वो एंगल को हम लोग क्या मानेंगे, बीटा। बीटा मीन्स विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज विथ रिस्पेक्ट टू आई। एंड मैग्निफिकेशन आंसर क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज when visual angle formed by the object when capital D, this is object A B। so ये I के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, देखो ये जब I से D डिस्टेंस पे है ना, तो जो भी एंगल क्रिएट करेगा दैट इज अल्फा। अल्फा इज द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट D। यस, सो मैग्निफिकेशन का आंसर क्या होगा, देखो वी नो इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। सो बीटा बाई अल्फा मीन्स बीटा इज द विजुअल एंगल formed by final image divided by visual angle formed by object kept at D। visual angle formed by object kept at D। सो माइक्रोस्कोप पे हम लोग माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। सो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स का हाइट कितना, हाइट वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स जो विजुअल एंगल भी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि विजुअल एंगल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बीटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं टैन बीटा एंड डिवाइड बाई टैन अल्फा, बस। तो टैन बीटा का आंसर क्या होगा, देखो जो ट्राइंगल में अभी शो कर रहा हूँ, देखो ये जो ट्राइंगल, टैन बीटा का आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर इज A डैश B डैश, बेस क्या है UE, इसका आंसर क्या है UE। सो A डैश B डैश बाई A डैश B डैश डिवाइड बाई UE होल डिवाइड बाई टैन अल्फा। ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, टैन अल्फा का आंसर क्या होगा, AB बाई D। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा, AB बाई कैपिटल D। सो आंसर क्या आ रहा है अभी, A डैश B डैश बाई UE इंटू D बाई AB। यस,
सो इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस देखो थोड़ा, इन ऑब्जेक्टिव लेंस पे मैग्निफिकेशन का आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v बाई यू। हाइट ऑफ इमेज कितना ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ए डैश बी डैश इज इमेज, सो हाइट नेगेटिव होगा माइनस ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट हाइट प्लस ए बी, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा, वी ओ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू ई, सो सिंपली हम लोग लिखेंगे वी ओ बाई माइनस यू ई, वी ओ बाई माइनस यू ई। दैट मीन्स माइनस माइनस एन कैंसिल होने के बाद ए डैश बी डैश का रिजल्ट क्या आ रहा है, ए बी इंटू वी ओ बाई यू ई, ए बी इंटू वी ओ बाई यू ई। ये बस हमारा फाइनल आंसर ए बी का। हाँ सॉरी, सो ए डैश बी डैश का वैल्यू ए बी इंटू वी ओ बाई यू ई। सो ए डैश बी डैश के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, इंस्टेड ऑफ ए डैश बी डैश सिंपली मेंशन ए बी इंटू वी ओ बाई यू ई, और क्या बचा है देखो डी बाई यू ई इंटू ए बी। सो ए बी कैंसिल हो गया, सो फाइनली वी कैन राइट वी ओ बाई यू ओ, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, ये क्या होगा वी बाई यू ना ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखो वी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू ओ वी ओ तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, यू ओ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वी ओ बाई माइनस यू ओ, सो फाइनली वी ओ बाई माइनस यू ओ, बस वी ओ बाई यू ओ, यहाँ पे वी ओ बाई यू ओ। ओके, थोड़ा हड़बड़ी से मिस्टेक हो गया, सो वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। दिस इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यस, वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। लेकिन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी पोजिशन, सो फाइनल इमेज कौन क्रिएट कर रहा है, आई पीस लेंस फाइनल इमेज को क्रिएट कर रहा है। यस, सो देखो, सो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंड आई कंडीशन, स्ट्रेंड आई। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, सो फाइनल इमेज कौन क्रिएट कर रहा है, आई पीस लेंस। आई पीस लेंस का फोकल लेंथ कितना, प्लस एफ ई, प्लस एफ ई। आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, देखो आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यू ई पोजिशन पे है, माइनस यू ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो सिंपली यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे u इज इक्वल टू माइनस यू ई एंड इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ व्हाट, आई पीस लेंस। यहाँ पे फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एज पर द क्वेश्चन डी, सो माइनस डी, ऑपोजिट टू इंसिडेंट मेजर कर रहे हैं। सो फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सो इसमें 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। सो 1 बाई यू ई का वैल्यू कितना मिला, 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। सो हमारा मैग्निफिकेशन का आंसर क्या मिला था, देखो वी ओ बाई यू ओ डी यू बाई यू ई। सो एम इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। सो एम मैक्स कितना होगा, हाँ इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये भी याद रखो। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, द मैग्निफिकेशन दैट विल अचीव दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। सो वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू यू को हम लोग लिखेंगे डी इंटू 1 बाई यू ई, दैट मीन्स वी ओ बाई यू ओ इंटू डी इंटू 1 बाई यू ई इज 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने से वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई प्लस डी बाई डी, दैट इज 1 प्लस डी बाई एफ ई। दिस इज योर एम मैक्स and this answer is asking. Yes, so with this we have completed what, देखो क्वेश्चन पढ़ो, derive an expression for the total magnification when the final image is formed at the near point least distance of distant vision. Yes, इसका भी एक सेकेंड बिट अवेलेबल है, देखो जो क्या है वो क्वेश्चन सेकेंड बिट, वो जो डेरिवेशन एंड डायग्राम दैट इज फुली वेरी वेरी इजी। यस, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर दो बस, आर कंप्लीटली नेसेसरी, कहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंटेशन नोटेशन देना चाहिए बस उसको ठीक से ऑब्जर्व करो। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बिट वही क्वेश्चन का,
क्या है वो क्वेश्चन? ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर. अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस अनदर वन इज आई पीस लेंस. एक है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस, अनदर वन इज आई पीस लेंस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस. सो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1.25, दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस 1.25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 125/100. सो 25 में सो कट करने से 5/4 सेंटीमीटर आ रहा है. देन सेकेंड और क्या डाटा दे रखा है? एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. अच्छा, आई पीस का फोकल लेंथ आई पीस प्लस 5 सेंटीमीटर, दोनों कॉन्वेक्स लेंस ना. ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके, सो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? -2.5 सेंटीमीटर और -5/2 सेंटीमीटर, बस. देन क्या देखो गिवन है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. अच्छा, फाइनल इमेज कौन क्रिएट करेगा? अभी मैं बोल रहा था आई पीस. सो इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस -इन्फिनिटी, सेम साइड ऑफ द लेंस हो रहा है. देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस. अच्छा, डायग्राम देखो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस को हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप. उसका आंसर क्या है? वी ओ मैग्नीट्यूड प्लस यू ओ मैग्नीट्यूड. दिखाई दे रहा है यू ई, वी ओ मैग्नीट्यूड प्लस यू ई मैग्नीट्यूड. दैट मीन्स वो पूछ रहा है तुमको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस, मीन्स एल इज इक्वल टू वी ओ मॉड प्लस यू ई मॉड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो दोनों जो डाटा दे रखा है ना, उसी हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करो. सो यहाँ पे वी ओ कैलकुलेट कर पाएंगे बस. 1/VO इज इक्वल टू 1 लेंस फॉर्मूला 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO. सो कितना आ रहा है आंसर देखो? 1/V ऑब्जेक्टिव इक्वल टू 1/F ऑब्जेक्टिव प्लस 1/U ऑब्जेक्टिव. सो 1/F मीन्स 1/5/4, दैट इज 4/5 प्लस 1/UO 1/-5/2, that is -2/5. So 4 - 2 is 2, so 2/5. So V ऑब्जेक्टिव कितना हुआ? इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 5/2, दैट इज प्लस 2.5 सेंटीमीटर. एक पार्ट मिल गया हमको V ऑब्जेक्टिव. देन कैलकुलेट यू ई कितना होगा? सो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F. सो VE UE FE. So 1/VE, that is -infinity, minus 1/UE, yes, is equal to 1/FE का वैल्यू 5. So 1 mentioned with the 0. So minus 1/UE is equal to 1/5. So object distance in eyepiece -5 सेंटीमीटर. So फाइनल आंसर में हमको मिल जाएगा अभी इजीली. So V ऑब्जेक्टिव कितना? इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन आई पीस लेंस का मैग्नीट्यूड. सो इसका वैल्यू 2.5 प्लस यू का मैग्नीट्यूड -5 का 5. सो आंसर हो गया 7.5 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस एज पर द क्वेश्चन. यस, दिस इज अबाउट द सेकेंड बिट क्वेश्चन. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बार बार सॉल्व करो, ठीक से थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल जितना स्पीड से सॉल्व करने के बाद भी समझ में आएगा. यस, नेक्स्ट कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. सॉरी, ये तो 33 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे. एक क्वेश्चन हो गया, उसका और में और एक क्वेश्चन है. देखो और बीट में, इसका भी 2 बीट है. फर्स्ट बीट में सॉल्व कर रहा हूँ, इसका सेकेंड बीट इसके बाद सॉल्व करेंगे. ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन ए राइट एंगल प्रिज्म. अच्छा, राइट एंगल प्रिज्म मीन्स उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना? 90 डिग्री. एट पॉइंट वाई इट एमर्जेस अलॉन्ग द प्रिज्म. ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, देन ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड एमर्जेंट रे ऐसे मूव कर रहा है. देखो एमर्जेंट रे ऐसे मूव कर रहा है, बस. तो क्या होगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जो प्रिज्म का जो सिंप्लीफाइड डायग्राम, बस. ये एंगल क्या था? R1, ये एंगल R2 एंड ये एंगल ई का आंसर क्या आ रहा है अभी? 90 डिग्री एज पर द गिवन मेंशन क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है हमारा? अवेलेबल एयर, दिस इज एयर एंड अंदर प्रिज्म. ये तुम्हारा प्रिज्म मटेरियल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना? 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म लेट इट बी μp. यस, एंड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऑल्सो 1.
बस बस इतना ही। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एंगल। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट एंगल कितना दे रखा है, थीटा। सो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोल रहा था, बोलो। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता है तुमको, देखो सिंपल चीज़ में बोल रहा हूँ तुमको। ये एक इंटरफेस, यस ये तुम्हारा सपोज इंटरफेस, एंड मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ ये हमारा नॉर्मल, यस सपोज ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, बस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। सो कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस। सो इक्वेशन क्या होगा, स्नेल्स लॉ, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। यस, एज पर दिस वी कैन राइट फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू, ये हो गया तुम्हारा फास्ट इंटरफेस, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इंटरफेस। मैं क्वेश्चन के ऊपर लिख रहा हूँ बस। ओके, सो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फास्ट इंटरफेस देखो कैसे सॉल्व होगा। सो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फास्ट इंटरफेस कितना होगा, इक्वेशन म्यू ए इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू पी इंटू साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना r1, बस। सो म्यू ए का वैल्यू कितना 1, सो 1 इंटू साइन थीटा इज थीटा, साइन थीटा इक्वल टू म्यू पी इंटू साइन r1, इतना मिल रहा है हमको। देन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड इंटरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड इंटरफेस कितना होगा इक्वेशन देखो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन r2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 90, बस उसको ही लिखोगे हम लोग। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी इंटू साइन r2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए इंटू साइन ई, साइन ई का वैल्यू कितना साइन 90, साइन 90 क्या है 1, सो म्यू एयर इज 1, सो म्यू पी साइन r2 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 1, सो साइन r2 का आंसर क्या मिल रहा है हमको 1 बाई म्यू पी। सो इसमें देखो साइन r2 इज 1 बाई म्यू पी। अच्छा एंगल ए कितना दे रखा है देखो, गिवन एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए का डेरिवेशन मेरे को पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू r1 प्लस r2 दैट इज इक्वल टू 90। तो r2 का आंसर क्या मिलेगा 90 माइनस r1, 90 माइनस r1। सो बस यहाँ पे पुट करो। सो साइन 90 माइनस r1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू पी, सो दैट इज कॉस r1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू पी। देखो बस कॉस r1 हमको मिल गया, किसी भी हालत से हमको साइन r1 निकला। ओके, साइन r1 को ढूंढना चाहिए बस। साइन r1 कैसा होगा, क्या होगा देखो, कॉस r1 इज 1 बाई म्यू पी। सो बस कॉस थीटा का आंसर क्या है, कॉस थीटा इज बी बाई एच। सो मैं एक राइट ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूँ सिंपली, इसको मैं दे रहा हूँ r1 एंड बी को मैं लिख रहा हूँ 1, एच को म्यू पी। देखो ये जो ट्रायंगल में क्रिएट किया हूँ ना, हाँ, सो 1 ये होगा तुम्हारा म्यू पी। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे कॉस r1 के इतना आ रहा है 1 बाई म्यू पी। सो परपेंडिकुलर का आंसर क्या होगा, एच कितना होगा म्यू पी स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर, बस पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रूट ओवर। सो साइन r1 का वैल्यू कितना मिल रहा है 10, यहाँ पे साइन r1 इज इक्वल टू हमारा मिल रहा है p बाई एच, सो म्यू पी स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर डिवाइड बाई म्यू पी, बस। तो बस पुट द वैल्यू एंड फाइंड द फाइनल आंसर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, साइन थीटा इक्वल टू म्यू पी इंटू साइन r1 का वैल्यू म्यू पी स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर डिवाइड बाई म्यू पी कैंसिल हो गया, बोथ साइड का स्क्वायरिंग ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू म्यू पी स्क्वायर माइनस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू पी स्क्वायर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का स्क्वायर कितना मिला 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू पी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर, yes, square root of 1 plus sin square theta।
This is your refractive index of prism as per the given question. One of the finest question. ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे भी गिरा था. यस, प्रीवियस ईयर. ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट बिट. सेकेंड बिट को हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन. तो क्या पूछ रहा है देखो. सो दैट फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म, ये एक इक्विलैटरल प्रिज्म सपोज. इक्विलैटरल प्रिज्म मीन्स एंगल ए कितना, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री. सो मिनिमम डेविएशन, अच्छा मिनिमम डेविएशन के बारे में पूछ रहे हो. मिनिमम डेविएशन, अच्छा ये यहाँ पे देखो, मिनिमम डेविएशन अकर्स व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई इक्वल टू दिस मच. अच्छा मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है. फॉर मिनिमम डेविएशन, रिमेंबर फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस and r1 is equal to r2. Let it be r. Yes, and we know a is equal to r1 plus r2. That means we can write 60 is equal to r plus r, that is 2r. So r का आंसर कितना आया, r is equal to 60/2. That means r is equal to 30 डिग्री. बस. So यहाँ पे सो मिनिमम डेविएशन पूछ रहे हो. सपोज दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर एमर्जेंट रे. सॉरी एमर्जेंट नहीं तो रिफ्रैक्टेड रे. ये तुम्हारा नॉर्मल. दिस इज योर एंगल आई एंड दिस इज योर एंगल r1. एंड ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ AR, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. सो अभी मैं बोल रहा था अभी कैसे अप्लाई करोगे इसको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ दिस. सो कितना इक्वेशन मिलेगा देखो. वो इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ AR इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंटू साइन r1. सो क्वेश्चन दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को म्यू डिनोट करो. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दे रखा है. सो वी कैन डेविएट द नोटेशन. ओके, सो मैं लिखूंगा म्यू AR इज 1. सो साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन r1 का वैल्यू क्या है. फॉर मिनिमम डेविएशन r1 इज इक्वल टू r मैं ले रहा हूँ. पास. दैट मीन्स साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 डिग्री. साइन 30 कितना, 1/2. दैट मीन्स μ/2. सो आई कितना होगा, साइन इनवर्स μ/2. साइन इनवर्स μ/2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, तो देखो फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल आई का वैल्यू कितना हो रहा है, दिस मच, साइन इनवर्स μ/2. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टोटल क्वेश्चन अवेलेबल इन द क्वेश्चन पेपर. ओके, लगभग 3 hours 2 minutes 2 hours 55 सेकंड 2 hours 59 minutes कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम लोग सारा का सारा और क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं. यस, सो इसके बाद कौन सा सेट क्वेश्चन तुम लोग को ज़रूरी है कमेंट बॉक्स पे मुझे सेंड करो. ओके, उसी हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा. सो पुट योर सजेशन एंड गिव योर कमेंट्स. यस, आई होप दिस टोटल क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ ऑल ऑफ यू practice well for your upcoming Sahodaya exam, which is going to be held in January 3, 2026. So with this I want to conclude this lecture. So thank you. Have a nice day. Happy New Year to all of you.